हरे कृष्णा। आप सभी माता जी प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के भक्ति रसा के सत्र में। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो पिछले सप्ताह का विषय था उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि पाप और पुण्य कर्म क्या है, और किस तरह आज का विषय जो है कर्म से हम किस तरह से मुक्त हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। चर्चा करने से पहले जैसे आप सभी को बोला था, हम लोग श्री नामामृता पढ़ेंगे। श्री नामामृता हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूँ मैं। ओके। शिफाली माता जी इंग्लिश में जी है, प्रभु। पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। जी श्री नाम रामनाथ से या अंडरस्टैंडिंग ऊपर से श्री भी। नामामृता से फिर हम लोग इससे बाद एक जप करेंगे। जी ओके, प्रभु जी। जूम कर देता हूँ। The results derived by great sacrifices in the सॉरी। past the results derived by the great sacrifices in the past can be derived by performing Sankirtana Yagna. Unless we are prepared to perform the prescribed sacrifices, our supplies of the necessities of life will be checked. Bhagavad Gita confirms that Lord Brahma created human society um, along with Yagna, the performance of sacrifice. Yagna means Lord Shiva, Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, and sacrifice means working for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. In this age, however, it is very difficult to find qualified Brahmanas who can perform sacrifices as prescribed in the Vedas. Therefore, it is recommended in Srimad Bhagavatam, Yagna Sankirtan Praya, that by performing Sankirtan Yagna and by satisfying the Yagna Purusha, Lord Chaitanya, one can drive all the results derived by great sacrifices in the past. King Prithu and others derived all the necessities of life from the earthly planet by performing great sacrifices. Now, the Sankirtan movement has already been started by the International Society for Krishna Consciousness. People should take advantage of this great sacrifice and join in the society's activities. Then there will be no scarcity. If Sankirtana Yagna is performed, there will be no difficulty, not even for industrial enterprises. Therefore, this system should be introduced in all spheres of life social, political, industrial, commercial, etc. Then everything will run very peacefully and smoothly. Srimad Bhagavatam 4.19.7. In the material world, one may become very tired if he works all the time, but if one works in Krishna consciousness, he can chant Hare Krishna, engage in devotional service 24 hours a day, and never get tired. But if we vibrate some mundane vibration, then we soon become exhausted. There is no question of becoming tired on the spiritual platform. The spiritual platform is absolute, the perfection of yoga, chapter 2. Hare Krishna. धन्यवाद। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्री नामामृता, है ना। नाम में कितनी महिमा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी फल व्यक्ति को प्राप्त होता है यज्ञ करने के बाद, जो भी हम पूर्व में कर चुके हुए हैं, वो सिर्फ अगर कोई व्यक्ति जो है संकीर्तन यज्ञ का अर्थात है सामूहिक जप। जब आप सभी हैं यहाँ पे करीब 17 भक्त लोग हैं अभी जुड़े हुए हैं, तो सभी एक साथ आके जब हम लोग जप करते हैं, इसी को सामूहिक जप कहते हैं, संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। तो बोलते हैं जब तक हम अपना जो कर्तव्य है, हाँ, जो कर्तव्य शास्त्र के अनुसार जो है यज्ञ नहीं करते हैं, तो फिर क्या रहेगा, हमें जीवन में जो चीज़ की आवश्यकता है वो जो है रुकावट की तरह बनेगी। तो हम अपना कर्तव्य का पालन, तो भगवत गीता जो है यही बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है, भगवान उनको बनाने के बाद जो ब्रह्मा जी जो है क्या कहें, 14 लोक बनाए, और 14 लाख में जो है क्या किए, मनुष्य को बनाए, मनुष्य बनाए, देवी देवता बनाए। और इस तरह से जो है यज्ञ का किए। तो यज्ञ करने के बाद जो है आहुति होते हैं, तप रहता है। यज्ञ का अर्थात ही है भगवान, विष्णु। और भगवान विष्णु जो है पुरुषोत्तम है, और उनके लिए जब कोई कार्य जब करता है उनकी संतुष्टि के लिए, तो ही फिर जो है उसको यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ की जो मुख जो रहती है, अग्नि जो रहती है, जो भी आप पूजा कर लीजिए, सबके जो मुख है सबसे पहला प्रथम जो रहता है भगवान विष्णु को जो है चढ़ता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। इस युग में हम देखेंगे अधिकतर लोग क्या करते हैं, हम पहले अपनी इंद्र तृप्ति करने जाते हैं। इसी के कारण जो रहते हैं हम कर्म के बंधन में जो रहते हैं हम फंसते जाते हैं। तो बोलते हैं अब यज्ञ भी देखेंगे, पहले के समय में जो था ब्राह्मण लोग जो रहते थे मंत्र उच्चारण करते, तो उच्चारण मंत्र से करने से जो अग्नि अग्नि जो रहती थी वो प्रज्वलित हो जाती थी, है ना। आजकल तो हम लोग देखते हैं
यज्ञ की जो भी सामग्री रहती है वो शुद्ध नहीं मिलता है, तो कलयुग में हम कैसे यज्ञ कर सकते हैं? तो श्रीमद् भागवतम में जो बताते, ना सामग्री अच्छी से मिलती है, ना तो ही उत्कृष्ट ब्राह्मण रहते हैं जो जो है वेद के अनुसार जो है यज्ञ को जो है संपूर्ण कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम में जो है बोलते हैं कि ये जो संकीर्तन यज्ञ है, अगर बस इसको आप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब करते हैं तो फिर जो यज्ञों का जो भगवान है, आ, विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है, उनको जो है संतुष्ट कर देते। तो चैतन्य महाप्रभु यही आए थे भौतिक संसार में, और कलयुग में हम सभी को यही बताया है कि जब भी कोई व्यक्ति जब है ना, बाकी जो भी कार्य करता है सिर्फ केवल यज्ञ जो करते हैं उसी से जो है उनको फल जो है प्राप्त होता है। तो पृथु महाराज का श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि पृथु महाराज जो रहते हैं कि देखते हैं यज्ञ करते हैं, तो फिर यज्ञ करने से होता है देवी देवता प्रसन्न होते हैं और वो सारी चीज जो है प्रदान करते हैं। और देवी देवता कहाँ से शक्ति पाते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण से पाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं जब यज्ञ करने से जो है धरती भी जो रहती है, सारी चीज जो आपको आदान प्रदान देते हैं, वायु हुई, कई जब अकाल पड़ जाता है तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे थे कि यज्ञ करने से क्या होता है, संकीर्तन यज्ञ करने से जो है, हैदराबाद की स्टोरी 1970s के, तो उसमें जो है बारिश भी होने लगती है। तो देखते हैं जहाँ अकाल पड़ते हैं तो यज्ञ करते हैं, उसके बाद जो है वर्षा होनी प्रारंभ होती है। बोलते हैं ये संकीर्तन जो आंदोलन जो है, ये जो है शिला प्रभुपाद की कृपा के द्वारा जो है एक संस्था बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय भावना कृष्णामृत है, इस्कॉन जिसको कहते हैं। और हम सभी को एक मौका मिला कि हम लोग जो है अच्छे तरीके से जो है, अब जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी जाति के हों, अमीर हों गरीब हों, सभी जो है यहाँ पर आके जो है सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान का जो है हरि नाम जो है ले सकते हैं। तो बोल रही है ये बहुत ही एक सुनहरा अवसर है जिसका हमें हमें जो है लाभ उठाना चाहिए, और इस यज्ञ में जो है हमें जो है सम्मिलित होना चाहिए। और ये जो सोसाइटी में जितनी भी एक्टिविटीज जो रहती है, जितने भी कह सकते हैं कार्य जो होता है, वो भगवान से रिलेटेड रहता है। इसलिए जो यहाँ पे देखेंगे कभी भी यहाँ पे जो है कमी नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, आज उनके ऊपर आज भी स्टडी करते हैं लोग, कहते हैं कि मात्र 40 रुपया लेके जो है इस भारत से गए थे, और 12 साल में जो है 108 मंदिर का निर्माण कर दिए हैं। और एक मंदिर बनाने में जो है कम पैसा नहीं लगता। तो यहाँ पे बोल रही है कि भगवान के कार्य में जो है कोई भी कमी नहीं रहती है। तो संकीर्तन यज्ञ जो है इसी तरह से बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अत्यधिक जो है कठिन नहीं है। आप कोई पॉलिटिशियन हुआ या कोई समाज करता हुआ, कोई भी व्यक्ति जो है इंडस्ट्री चला रहा है, जो वहाँ पे भी है, सारे सारे के सारे जो है वो कर सकते हैं। और जो भी ये व्यक्ति जो है पालन करता है, तो वो जो है ऑटोमेटिकली आप देखेंगे सारा कार्य जो उसका जो है कोई भी काम छूटेगा नहीं, वो आनंद में रह के और शांति प्रभाव से सारे चीज जो है होते रहे। बोलते हैं ना भगवान की कृपा से सब, बोलते हैं ना भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, एक भजन भजन जो है ना वो है। तो इस भौतिक संसार में देखते हैं कि हम अधिकतर जो भी कार्य करते हैं, तो कार्य करने के बाद दो चीज होता है, एक तो हम बहुत ही ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, और दूसरा जो रहता है उससे बोर हो जाते हैं, हमेशा बोलते हैं नया नया चाहिए, है ना। तो इसलिए जब हम भगवान के लिए जब हम काम करते हैं कृष्णा कॉन्शियस वे में रह के, कृष्णा भावना अमृत में रह के, तब हम जब है करते हैं, जब भगवान का जब हम हरे कृष्णा जब चयन करते हैं और इस तरह से भक्ति में सेवा में रहते हैं 24 दिन कर, तो फिर हम कहते हैं कभी भी जो आप जो है थकेंगे नहीं। क्योंकि ये जो है श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है, ये वास्तविक में जो है भगवान स्वयं है जो अपने मंत्र में आए हैं। और ये करने से कभी भी कोई व्यक्ति जो है थकता नहीं है इससे, या खत्म हो जाता है। दो चीज होता है, धन होता है तो वो खत्म हो जाता है, या कोई व्यक्ति अगर कोको कोला अगर बोलेगा तो क्या होगा, थक जाएगा, क्योंकि उसको आनंद नहीं मिल रहा, शांति भी महसूस नहीं होगा। तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं यहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि ये जो है भौतिक स्तर से उठ के जो है दिव्य स्तर पे है। और दिव्य स्तर पे कोई भी काम किया जो जाता है वो कभी भी क्या कहते हैं, खराब नहीं होता है। ठीक है। तो ये श्री नाम अमृता था। अभी हम लोग एक राउंड जो है जप करेंगे। आप सभी से निवेदन है कृपया करके अपना वीडियो ऑन कर लें। आज बुधवार का कक्षा है भक्ति कक्षा में, आप सभी को जो है वीडियो ऑन करना रहता है। मैं भी एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। हरे कृष्णा। सभी से निवेदन है कृपया करके वीडियो ऑन करें, और सभी रेडी हैं तो बताएं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी को अनम्यूट करना है, जो अनम्यूट नहीं करेंगे तो मतलब आप चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बंधु श्री नित्यानंदा अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत श्रीवासति गदाधर गौर श्रीवासादि भक्तवृंद गौर नमो भक्तवृंद विष्णुपदाय हरे कृष्णपृष्ठाय कृष्ण हरे भूतले कृष्ण श्रीमते कृष्ण कृष्ण भक्तिवेदांत हरे स्वामी राम राम नामिने राम नमस्ते हरे सरस्वती देवे गौरवाणी हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे Hare कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे राम 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 हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 Hare हरे 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 राम हरे हरे Krishna, Hare कृष्ण Krishna, Krishna कृष्ण Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे नंदा श्री आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु Hare Krishna, Hare Krishna, नित्यानंदा Hare श्री Rama, Hare अद्वैता Rama, गदाधरा Hare शिवासदि Krishna, Krishna गौर Krishna, Hare Hare, भक्तविंद। Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Ram Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram Hare, Ram, Ram Hare Ram, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Ram Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare, Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Ram, Hare Ram, Hare, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Ram Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare Hare, Ram, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Krishna, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Ram Ram, Krishna, Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare, Ram Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Ram Hare Ram, Hare, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Chaitanya Hare, Prabhu Nityananda, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare Ram, Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Krishna Ram, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Krishna, Ram, Krishna Ram, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Ram Hare, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare, Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare सभी का Krishna, हो Hare जाएगा तो Krishna, Krishna, बताइए। Hare Hare, Ram Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare, Hare Hare, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Krishna Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Ram Hare, Hare Hare Ram, Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा, धन्यवाद भक्तों। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशदि गौर भक्तविंदा। ओके, वीडियो बंद हो गया सभी का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सवापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सह गण ललिता श्री विशाखं वितंश। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणामिनी हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनामं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशदि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते जय सामने नामने नमाचार्य पदानि तय पदानि गौर दामोदय नगरगामतन मुखम करोटि वाचलम भंगम लंघयति गिरिम यत् कृपातः मां वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं परमानंद माधव श्री चैतन्य।
हरे कृष्णा सभी भक्तों का पर पुनः आज से कक्षा में स्वागत है। और आज का जो विषय है कोई बता सकते हैं क्या है? हमने ग्रुप में मैसेज भेजा था, किन्हीं को मैं याद बता है? दूं प्रभु जी। जी बताइए। कर्म कर्मों की गतिविधियां। गतिविधियां। ओके। पिछले बृहस्पतिवार को हमने देखा था कि कर्म हम करते हैं, कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमें कर्म मिलता है, अच्छा या बुरा मिलता है। आज हम देखेंगे कि उस कर्म से जो है कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो जैसा कि जब भी हम कक्षा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि दोनों सेम टॉपिक है, तो आज का जो प्रश्न भी जो आपके लिए रहेगा कुछ वैसा ही रहेगा। लास्ट वीक आप सभी से कहा था कि अगर आपके पास बहुत धन आता है तो आप क्या करेंगे। आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। हाँ, पिछले बार हम लोग बोले थे, अब स्पेसिफिक बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया मिलता है तो आप सबसे पहला कौन सा कार्य करते हैं? ठीक है, 1 करोड़ रुपया आपको मिल रहा है अभी, आप सबसे पहला क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न है, या एक आप कोई अ, अपने निजी जीवन से कुछ बता सकते हैं कि आपने किसी की बहुत सेवा की है ना, जो आपके बहुत ही करीबी था, और कहीं ना कहीं जो है वो आपसे जो है खुश नहीं हुआ था। ठीक है, ये 2 प्रश्न हैं, दोनों में से कौन स्टार्ट करना चाहेंगे? सभी सो गए हैं क्या? वीडियो बंद है? नहीं प्रभु जी, जग रहे हैं। ओके, जग रहे हैं तो वीडियो ऑन कीजिए। ये कक्षा में अगर वीडियो ऑन रहेगा तो आप ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो फिर मुझे लगेगा दूसरा कार्य भी आप कर रहे हैं। ओके, मोनिका माता जी आपका वीडियो ऑन है, आप बोलिए। ये मत बंद कर, ये बंद करना कौन शालिनी बोलेगा? माता जी मैं बंद म्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ, मोनिका माता जी आप म्यूट है। जी प्रभु जी। प्रश्न सभी को क्लियर है ना? 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास मिलता है तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? और दूसरा जो है, कभी कभी हम बहुत सेवा करते हैं किसी के, तो उसके बाद जो है किसी निजी रहते हैं, कोई भी आपका निजी हो सकता है, और फिर जो है आपसे वो खुश नहीं होते, दोनों में से कोई। 1 करोड़ रुपया मिलेगा। मतलब इतना पैसा तो हम पहले सोचे भी नहीं थे कि हमको कभी मिलेगा। ठीक है, अभी सोच लीजिए मिल रहा है। मिलेगा तो क्या पहले बच्चों सबसे के लिए पहला कुछ कार्य क्या करेंगे। करेंगे? सबसे पहले बच्चों के लिए कुछ सोचेंगे। दो ओके, बच्चे हैं उसके लिए। क्या उसके सोचेंगे? बाद आप मतलब उत्तर दे रहे उसके लेकिन लिए मुझे ही कुछ प्रश्न पूछना पड़ रहा है। बच्चों के लिए मतलब उनके फ्यूचर के लिए कुछ करके रख दे, या उनके एजुकेशन के लिए अगर ओके, इतना पैसा बेस्ट एजुकेशन दे ठीक, सके उनको। ठीक। और फिर वही जो लास्ट टाइम मैं बोली थी कि सो मंदिर वगैरह जरूरतमंद, बस नहीं वही नहीं, ठीक है, करेंगे। पहला कार्य जो देखते हैं वही है। ठीक है, हाँ। धन्यवाद माता जी। सुरेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, 1 करोड़ रुपए में तो सबसे पहला जो प्लान आता है एक फ्लैट खरीदने का, वो 1 करोड़ में आएगा भी नहीं अभी। एक फ्लैट लेना है। ओके, धन्यवाद। शिफाली माता जी। प्रभु जी डाउन पेमेंट कर दूंगी फ्लैट का। धन्यवाद। पूरन सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले तो हमने ये सोचना चाहिए कि भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करें, जैसे मेडिकल दान उकरा हुई। 1 करोड़ फिर आपको उसके मिल गया बाद तो में आप सबसे हमारे को पहले क्या करेंगे प्रभु? सबसे पहले तो हम भगवान की संतुष्टि के लिए जो मंदिर वगैरह कहीं बन रहा है उसमें हम योगदान इधर देंगे। और फिर उसके बाद में हमने अपना भौतिक भी देखना पड़ेगा, अपने घर वगैरह भी देखना ही पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। जानकी सिंह माता जी, आपको अनम्यूट करना होगा। माता जी आप म्यूट पे रुकिए, मैं वहाँ पे आपका बटन आएगा, आप अनम्यूट कीजिए, क्लिक कीजिए उस पे। हाँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी।
एक मैं करोड़ आ गया हमारे आपके पास तो घर में। घर नहीं है प्रभु जी, मैं सबसे पहला अपना घर बनाऊंगी। अच्छा, घर बनाएंगे। धन्यवाद माता जी। सतेंद्र प्रभु। हाँ प्रभु जी, पैसा मिलने के बाद खूब मंदिर जाएंगे, घूम के आएंगे, सैर सपाटा करेंगे, और किसी दीनहीन की मतलब वो सेवा करेंगे बस। ठीक है, धन्यवाद। जानकी माता जी। जानकी बोला माता जी। प्रभु मैं भी, पहले तो मैं पागल हो जाऊंगी इतना पैसा देख के। कभी देखती भी नहीं है प्रभु इतना पैसा। अच्छा। फिर सोचूंगी। आज आज प्रभु नहीं दिख रहे हैं, प्रभु नीचे खाना बना रहे हैं क्या? आप ऊपर हैं। नहीं प्रभु खाना नहीं बना रहे, वो बाहर कुछ गेट का ग्रिल थोड़ा वो खराब हो गया था, वो करा ठीक करा है। रहे हैं। अभी आए हैं ओके काम ओके। वाले। हाँ। ठीक है, धन्यवाद माता जी। कौन बचे नेक्स्ट? रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं तो पहले काम वाली रखूंगी प्रभु। काम वाली रखेंगे। काम वाली रख के फिर तीर्थ पे चली जाऊंगी प्रभु जी। वैसे तो काम। 1 करोड़ रुपया आने आने के बाद माया हमें जगत देती, ये करो वो करो वो करो वो करो। ये काम पहले करूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चागनी माता जी, आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, आप क्या करेंगे सबसे पहले? चाकनी माता जी दुकान पे बैठे हैं, पैसा गिन रहे हैं, 1 करोड़ आ गया है। चाकनी माता जी वीडियो ऑन कीजिए, दुकान पे बैठे हैं। ठीक है, चाकनी माता जी के बाद में आते हैं लता माता जी, मंगला माता जी, कोई भी, कंवर आई माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडोत माता जी, जय माता जी। प्रभु जी 1 करोड़ रुपए आ गए तो मैं मायापुर में वीपी बन रहे हैं ना प्रभु जी, मैं वहां पर दे दूंगी, और भगवान के लिए अ, आभूषण और वस्त्र दे दूंगी। पूरा 1 करोड़? बचा नहीं नहीं प्रभु जी, आधा से भी ज्यादा, और बचा हुआ फैमिली के लिए खर्च करूंगी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेंगे? वृंदा माता जी, भागीरथी माता जी, संगीता माता जी, हीरा भंडारी माता लता जी। माता जी, लता माता जी। लता माता जी म्यूट पे है। हरे हीरा कृष्ण। भंडारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मैं तो सबसे पहले घर लूंगी अपने लिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद। अ, पूनम माता जी, रश्मि माता जी, संगीता माता जी। आज सभी शांत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तो सिसाद्रीपुरम में जो भी मंदिर में सेवा हुआ कर देने के इच्छा है प्रभु जी। पूरा 1 करोड़ दे देंगे। हाँ, बच्चे पति से थोड़ा बचा के दे देंगे। बचा के देंगे, 1 करोड़ बच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। रश्मि माता जी, संगीता माता जी। हरे दो कृष्ण दो प्रभु। संगीता माता जी है, पता नहीं कौन से है। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, ধন্যবাদ প্রণাম। আর একটা সঙ্গীতা মাতাজি আছে আপনারই। হ্যাঁ, আমি তো এখন জয়েন করলাম, কি কি হলো তার সেটা তো জানিই না अच्छा माता প্রথমত। जी, प्रश्न হ্যাঁ। ये है, 1 करोड़ रुपया आपको मिल गया, आप सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा प्रभु जी, ये सेम प्रश्न शायद कुछ दिन पहले भी मैंने नहीं, आंसर किया था प्रभु जी। पिछले वीक हम और लोग पूछे थे कि आपको बहुत हाँ, सारा धन मिलेगा तो आप क्या क्या करना क्या चाहेंगे। करेंगे, हाँ। तो मैं एक्चुअली कभी कोई सपना देखी ही नहीं प्रभु जी, और पैसा कमाना क्या करना वो मेरा हस्बैंड ही करते हैं प्रभु जी, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। और खुद के लिए क्या चाहिए, भगवान का सेवा में कितना कर सकूँ, एक घर होना, वो तो पहले ही बता दिया है, बस उतना ही, ज्यादा कुछ सोचती भी नहीं है प्रभु जी मैं। सॉरी, मैंने आंसर नहीं दे पाई थी प्रभु जी, बट सुरेश ऐसा प्रभु कुछ बोले प्लान आजकल नहीं एक करती करोड़ हूँ। में एक घर भी नहीं आता है, तो आप बोल रहे हैं बस एक घर चाहिए तो वो। ठीक है। 1 करोड़ और चाहिए प्रभु जी, एडिशनल, तभी ठीक है, होगा। मेरे पास 1 करोड़ ही था इसलिए 1 करोड़ ही बोला। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हीरा भंडारी माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या और प्रभु कोई? जी मैं माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। किसी को आ रही है?
मैं पहले सब लगाऊंगी। माता जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज आ नहीं रही है ठीक से। ठीक है। और कोई, रश्मि माता जी, भागीरथी माता जी, कंवराई माता जी। ठीक है, हम 30 सेकंड रुकते हैं, नहीं तो फिर हम कक्षा की हरे ओर। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सुनाई नहीं दिया। ओके। राधे राधे। माफी चाहूंगा हीरा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। भागीरथी माता जी, आप कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। मेरे को तो नहीं चाहिए प्रभु जी, मेरा सिर दर्द हो जाता है पैसों से। अच्छा ठीक है। सिर दर्द हो जाते हैं। ओके, माता जी को पैसा देख के सिर दर्द होता है, तो माता जी का सबसे पहले सिर दर्द आएगा, 1 करोड़ भी लेगा तो। ठीक है, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं तो बाकी हरे जिनको कृष्णा जो। प्रभु जी। लता माता जी बोलिए। प्रभु जी, आपको 1 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करेंगे? 1 करोड़ मेरे पास ऑलरेडी है, 1 करोड़ है ना, बैंक में है। बैंक में डिपॉजिट रहता है ना, सबसे पहले मुझे मिलेगा तो, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, 50% जो है भगवान की सेवा में लगाइए, 50% सेविंग में रखिए, 50% जो है, और बाकी जो 25% बचता है वो अच्छे से जो है परिवार के लिए और जो भी सेविंग के लिए रखिए। ठीक है। ओके। देखिए, ये प्रश्न था, एक और प्रश्न किए था लेकिन सभी भूल गए, कोई बात नहीं, वो हम प्रश्न कभी और ले लेंगे, देखेंगे। जब भी हमारे पास अचानक सा धन आता है तो, आप जैसे सभी ने बताया कि कितने बहुमूल्य चीजें हैं जिसको हमें अपने जीवन में जो है ख्याल रखना पड़ता है उस चीजों का। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम जो है क्या है ना। आप सभी ने अपने अपने हिसाब से बताया कि आपके जीवन में सबसे प्रमुख काम क्या है। उसके हिसाब से आपने बोला कि उसके लिए जो है अब मैं धन जो हूँ इकट्ठा करूंगा या उस चीज में लगाऊंगा। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि वृक्ष में अगर पानी देना है तो सबसे अच्छी तरीका होता है कि उसके जड़ में हमें जो है पानी देना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हम गतिविधियां करते हैं या जो भी हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म जो है या सेवा जो है, हमें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लगाना चाहिए जो आपको जो है सबसे उच्च श्रेणी का जो है फल जो है आपको प्रदान करता है। तो पिछले वीक हमने देखा था कि केवल भक्ति ही जो होता है जो हमें कर्म से जो है मुक्त कर सकता है। आज हम देखेंगे कि कर्म क्या होता है। तो उसके लिए पहले जो है, चाकनी माता जी अभी आप अनम्यूट किए हैं। ओके, आप दुकान पर है, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लोग ये मटेरियल है इसको पहले पढ़ेंगे एक बार, फिर जो है हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे प्रथम पंक्ति? मैं हरे पढ़ूं? कृष्ण प्रभु जी, पढ़ूंगा। पढ़िए प्रभु। ये अर्थ से पढ़ना है प्रभु जी या श्लोक भी? हाँ, जो भी, कुछ भी आपको अच्छा। पढ़िए। कर्म से मुक्त कार्य न हि कश्चित् तत्क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थ, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि यह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील अर्थात सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना मृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा के ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए।
किंतु यदि यह आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। धन्यवाद प्रभु। मोनिका माता जी, आप हरे पढ़ना कृष्ण प्रभु चाहेंगे? जी। ओके, कोई और पढ़ना चाहेंगे? तय कत्वा स्वधर्म चरनामबुज हरे भजन पक्वथ पते तातो यदि यत्र कक भासत्र बुद्धमुष्य कीको वार्थ अपतो भजनात् स्वधर्मात्। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इससे उसकी हानि या बुराई नहीं होगी, किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदन सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। धन्यवाद माता जी। ओके, नेक्स्ट वन पढ़ेंगे, पढ़िए। यथार्थ दूसरे कर्मणो। कोई माता जी, और कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। क्योंकि मनुष्य शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञ वही विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में किया गया है कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पुरा पुमान विष्णुराराध्यते। विष्णु पुराण 3.88। धन्यवाद माता जी। अतः भगवान विष्णु की बस माता जी, प्रसन्नता के लिए दूसरा कर्म। ओके, नेक्स्ट रहेगा, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का करना होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो ये 2-3 श्लोक हैं, हम लोग इसके ऊपर जो है आज चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए, कर्म क्या है, कौन बताएंगे? कोई भी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम जो भी कार्य करते हैं उसे कर्म कर सकते हैं।
जो भी हम कार्य करते हैं सारे कर्म होते हैं, ठीक है। और कोई? कोई भी, आप सभी को बोलना है। ये कक्षा आप लोग ज्यादा बोलेंगे, मैं कम बोलूंगा, लेकिन आप लोग सब शांत हैं, वीडियो भी बंद है, फिर सारे दूसरे कार्य में सब व्यस्त हो गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी लता माता जी बोलिए। जो खुद के लिए कर किया जाए उसे कर्म कहते हैं। जो खुद के लिए जो खुद कार्य के करें। लिए कार्य किया जाए उसे कर्म करते हैं। और अपने कोई? इंद्रियों को अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान को समर्पित करना चाहिए प्रभु जी। जो भी कार्य करके भगवान को मध्य में रख के हमें कर्म करना चाहिए। ओके। और कोई? कोई भी व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ करता है, उनके भगवान की संतुष्टि के लिए काम करते हैं, उसे ही यज्ञ कहते हैं। उसे यज्ञ कहते हैं, ओके। और कोई माता जी, प्रभु जी? बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा मैंने। किसी का सेवा करना भी प्रभु जी कर्म ही हुआ ना। किसी का सेवा करना भी कर्म हुआ, ठीक है। ठीक है। तो हमने पिछले कक्षा में देखा था, कर्म भी जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो भी शास्त्र के अनुसार जो मेंशन रहता है ना, कर्म का मतलब है कि जो भी आप क्रिया किए हैं उसको आपको प्रतिक्रिया मिलता है, कर्म का ये जो है परिभाषा है, ठीक है। जो शास्त्र के अनुसार जो है मेंशन रहता है उसको जो है आ, बोलते हैं कर्म बोलते हैं। और जो शास्त्र के विपरीत रहता है उसे क्या बोलते हैं, आ लगा दीजिएगा, है ना, आ कर्मा कहते हैं, जो शास्त्र में मेंशन नहीं है, ठीक प्रभु है। जी विकर्म होता है ना वो, हाँ कर्मा, सॉरी, हाँ शास्त्रों के विकृति विरुद्ध बोले, हाँ करते हैं। शास्त्र के विरुद्ध विकर्मा, माफी, सही बोले। शास्त्र के जो विरुद्ध रहता है विकर्मा हुआ। और जो आप सभी कोई को बोले कि भगवान की संतुष्टि के लिए करना है, तो जो भगवान के संतुष्टि के लिए जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, आकर्मा करते हैं, कर्म का अविपरीत। तो कर्म जब करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक पुण्य काम मिलता है, पूरे कर्म मिलेगा, उसे हो गया। पिछले कक्षा में हमने देखा था। और वही कर्म को जब आप विपरीत में मिलता है, जो शास्त्र के अनुसार नहीं रहता, तो आपको बुरे कर्म जो है भोगना पड़ता है। तो ये जो है हम सभी जो है पिछले कक्षा में देखे, और आज के कक्षा में हम देखें कि किस तरह से हम कर्म के बंधन से जो है मुक्त हो सकते हैं। वो कर्म के बंधन से जब हम मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम क्या करेंगे, निष्काम कर्म योग करेंगे। जब हम निष्काम कर्म योग का मतलब हुआ भगवान की संतुष्टि के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो फिर क्या रहता है, इस भौतिक जगत में क्या रहता है, हम जगत में हम बंधन में नहीं फंसते हैं। और फिर क्या होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो काम करते हैं उसका क्या होता है, उससे हम सदा मुक्त रहते हैं। तो प्रभु जी अब आपकी आवाज थोड़ी कम हल्की आ रही है। जैसे कोई और कंफर्म कर सकते हैं, आवाज ठीक से आ रही है? यस प्रभु जी, कमाल ही। कम आ रही है, हेडफोन की इशू होगी, ठीक है। अभी ठीक हुई प्रभु जी। ये हेडफोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इस भौतिक संसार में हम देखेंगे, जो भी कोई व्यक्ति रहता है वो कभी भी कोई अपनी गतिविधियां को जो एक क्षण के लिए भी जो है नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो हमेशा जो रहता है चंचल रहता है, हमेशा जो है कार्य करने के लिए सोचता है। तो जो भी हम गतिविधियां जो करते हैं ये क्या होता है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है जो भगवान के लिए होता है, उसको कृष्णा भावना अमृत कह लेते हैं। जो भगवान से विमुख होता है उसको क्या कहते हैं, हम माया कहते हैं, ठीक है। तो शास्त्र भी जो है हमें ये बताते हैं कि अपना जो है व्यक्ति का निजी कर्तव्य होता है ना, वो कर्तव्य रहता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को जो है पालन करने के लिए अपने अपने धर्म के अनुसार जो है रहता है। हम देखते हैं ना, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहते हैं। तो यज्ञ भी है, कौन है, भगवान विष्णु है। यज्ञ का अर्थात जो है शास्त्र में मेंशन है, यज्ञ मतलब हुआ भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। तो हम सभी को जो है भगवान विष्णु के लिए काम करना है, कृष्ण के लिए काम करना। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम कर्म के बंधन में जो है फंसते रहेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसलिए जो हमें भगवान के तो बोले, इसलिए बोलते थे वो, जब हम जो भी हम काम करते हैं, बोलते हैं, ये काम भी जो एक तरह का एक कला है ना। कर्म जो करते हैं कला है, क्योंकि हम जब काम करते हैं हाँ, तो फिर क्या होता है, उससे आपको क्या मिलता है, पाप या पुण्य मिलता है। लेकिन भगवान के लिए जब हम काम करते हैं उससे क्या होता है, आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता है।
और ये हमारे शास्त्रों में जो है बोलते हैं, तो बोलते हैं जो भी आप काम करते हैं सारे का जो सार अगर मूर्ख में देखिएगा तो क्या है, भगवान की संतुष्टि के लिए वो कार्य किया जाता है, वरना फिर जो है वो काम करने का नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अभी जो हम लोग जो डिस्कस किए हैं ना, वृंदावन में थे शिला प्रभुपाद, तो ये बता रहे थे कि कर्मा का अर्थात क्या होता है। जब आप शास्त्र के अनुसार काम करते हैं इसको कर्मा बोलते हैं। अब कर्मा भी जो है बहुत तरह का गतिविधियां रहता है। कर्म में जो हो गया कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ जो है बुरे रहते हैं, उसके कारण जो हमें दंड जो है मिलता है। तो हम सभी देखेंगे क्या कहते हैं, इंद्र तृप्ति जो है करना चाहते हैं, है ना, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। तो बोलते हैं हम अपने इंद्रियों को, श्रील प्रभुपाद कहते हैं इंद्रियों को जो है एक लिमिट रहती है, उससे ज्यादा जो है उसको जो है कहते हैं भोग नहीं पाते हैं। उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं। क्यों? क्योंकि लिए जो है कर्म के जो है हर एक जगह के क्या बोलते हैं प्रकृति के कानून है। आप देखें कोई जो है जिनको मालूम होता है कि मुझे चोरी करनी है, तो वो क्या कहते हैं, आप जिस भी देश में रहते हैं चोरी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है फिर उसकी जो है दंड मिलेगी। तो इसलिए जो है आ, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ पे जो है प्रकृति का तीनों गुण का प्रभाव रहता है। बोलते हैं देवी ही ऐसा गुनामयी मम माया दुरत्यया। तो बोलते हैं हम जो है इसको जो है पार नहीं कर सकते, दुरत्यया। तो इसको जब हम पार करेंगे तो क्या होगा, व्यक्ति को जो है दंड मिलेगा। ये जो है यही जो है नियम का कानून है। एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आप मान लीजिए आप खाने का ही लेते हैं ना, जो भी आप खाना लेते हैं, हम लोग पिछले कक्षा में भी देखे तो इसलिए इस पे कंटिन्यू कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए आधा किलो चावल जो है खा सकता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब दूसरा व्यक्ति जो है क्या रहेगा, आधा किलो का उसकी पाचन शक्ति है, वो 1 किलो खा लेता है। बिरयानी बना था, 1 किलो बुक बुक में जो है खा लिया। अब क्या होगा, खाने का तो खा लिया, अब फिर क्या होता है उस खाने के कारण जो होता है उसको पाचन शक्ति जो रहती है कम रहती है, 1 किलो को पचाने का नहीं रहता। तो फिर क्या होता है वो व्यक्ति को जो होता है ना क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब अनपच हो जाती है। अब अनपच हो जाती है तो वो जो है खा नहीं पाता है, तो फिर क्या होती है लूज मोशन हो जाते हैं, या बोलते हैं ना डिसेंट्री हो जाती है, और बहुत सारी चीजें हो जाते हैं। तो ये प्रकृति का देखिए ये स्वभाव है कि हम कुछ भी चीज अत्यधिक करेंगे तो उसके कारण जो है व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे ही बोलते हैं इस तरह जो है व्यक्ति जो रहते हैं कर्म के बंधन में जो है फंसते पड़ते, बोलते हैं यज्ञ से कर्मा। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ केवल जो है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। ये पंचायती आत्मा करना। तो मतलब यहाँ पे जो है भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए काम करते हैं तो फिर क्या होगा, हम कर्म के बंधन में जो है बार बार फंसते रहेंगे। क्यों फंसते रहेंगे, हम जो है हमेशा फल की चिंता करेंगे, है ना। इस फल की चिंता में करेंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसको भोगने का अधिकार जो है सिर्फ मेरा है। हम करते हैं ना, हम देखते हैं जब धन भी कमाते हैं सबसे प्रश्न पूछा, 1 करोड़ रुपया बहुत कम, सब अपने बारे में ही सोचा। मुझे अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा कि इसके लिए करना है, अपने परिवार से बाहर भी बहुत कम ही लोग ने जो है कहा। तो यही बोलते हैं जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जब हम स्वार्थी जब हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं इंद्र तृप्ति करना। इंद्र तृप्ति करना रहता है, तब हम क्या करते हैं, कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, सभी ने कहा कि घर बनाना है। अधिकतर लोग देखिए, हम लोग भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो 16,108 पटरानी के लिए एक एक महल बनाया था। हम सभी यहाँ पर एक घर को बनाने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं। आप सभी जो है 60 से ऊपर साल हो गए हैं, कितने लोग हैं फिर भी अभी विचारे कि शायद एक घर खरीदना है ना। तो यहाँ पे देखिए घर खरीदना है, कभी कभी देखेंगे तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जो हैं घर बनाने के चक्कर में पूरा धन इकट्ठा करते हैं, और घर तो बनाते हैं, फिर क्या होता है भूकंप आ जाता है, एक दिन भी नहीं रह पाते हैं घर में। तो ये भी कर्म के प्रभाव से जो है हम सभी का रहता है। तो यहाँ पे हमारे बोलते हैं कि कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, और फिर जब मान लीजिए तुरंत घर बनाए बुढ़ापा में जाके, घर बनाए और फिर रहते हैं कि मरने के समय फिर घर का ही याद आएगा, तो उसी घर में फिर क्या रहेंगे, कॉकरोच बिच्छू लेके जन्म हो जाएंगे, घर का आनंद लेंगे। तो जरूरी नहीं कि मनुष्य के जीवन में भी मिले। तो यहाँ पे बोलते हैं
अमायो यशो भूतानम। श्रील प्रभात कहते हैं कि नारद मुनि जो है बोलते हैं कि कर्मा ब्रह्मणि भवितम। कर्म जो हम जो गतिविधियां जो करते हैं वास्तव में जो है अपनी इंद्र तृप्ति ना करके जो है भगवान की संतुष्टि के लिए हम जब काम करेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, भक्ति रहते हैं। और यही भक्ति के कारण जो रहते हैं हम कर्म के बंधन से जो है मुक्त हो सकते हैं। है ना, शास्त्र में जो है यही बताते हैं। और शिला प्रपात फिर उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपको बीमारी होता है ना। बीमारी जो होता है वो कैसे हो गया, मान लीजिए दूध आप पिए, आप कुछ अत्यधिक दूध है पीना है आपको आधा किलो, फिर से आप 2 लीटर पी लिए। फिर क्या होगा, फिर से आपको या तो बीमारी हो जाती है या तो फिर आपको डिसेंट्री हो जाती है, बाथरूम भागने लगते हैं, ज़्यादा होता है ना तो अनपच होता है। मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। अनपच के लिए शिला प्रपात बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि यहाँ पे अत्यधिक खाने की जगह जो है क्या होता है। अब या मान लीजिए वही सेम दूध है, अब दूध से या तो आप खीर बनाते हैं या रबड़ी बनाते हैं, ज़्यादा खा लिए तो फिर जो है जो भी चीज़ आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर क्या रहेगा, आपको बीमारी या डिसेंट्री होती है। अब जब देखेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, हम यहाँ पे बोल रहे हैं तद एव ही अमयम द्रव्यम न पुनति चिकित्स्यहम। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यही जो दूध जो है ये कभी कभी जो है सेम चिकित्सा का भी काम करता है। अब जब जब जाएंगे, जब आपको पेट में जब म्यूकस हो जाता है, अनपच हो जाता है, वो रहता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ये है आप जो है दही खाइए। दही खाएंगे तो क्या होता है, जो डिसेंट्री हो रही है वो रुक जाती है। पोहा के साथ या चूरा के साथ जो है दही बना के या केला के साथ जो है उसको बना के जो है बोलते हैं उसको रोकने के लिए काम करता है। अब देखिए एक ही दूध से जो क्या हुआ, उसको आप पिए, रबड़ी पिए या मीठा खाएं या दूध ही पी लिए तो उससे डिसेंट्री हो गया। वही दूध से दही बनता है जो आपके चिकित्सा के भी जो है काम करते हैं, मेडिसिन में भी है ये यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे दूध जो है दोनों केस में सेम था, एक जो है आपकी डिसेंट्री भी होगी, पेट खराब भी होगी, और वही सेम दूध जो है आपकी औषधि की तरह भी जो काम करती है, आपको दही की तरह काम करती है। तो यहाँ पर जो है वो काम हो गया। तो मतलब क्या हो गया, बोलते यही सीक्रेट है, सीधा प्रोपात कहते हैं यही रहस्य है। कैसे, एक ही मिल्क, एक ही दूध से जो है ओरिजिन जो है, स्रोत वो सेम है ना। दूध ही ओरिजिन है, दूध से रबड़ी बन गया या खीर हो गया, दूध हो गया, तो आप अत्यधिक लेंगे तो क्या हो गया, डिसेंट्री होता है। और जब उसको सामूहिक क्या कहते हैं दही जब बनाते हैं तो उस चिकित्सक का भी वो काम करते हैं। है ना, उसमें जो है थोड़ा सा जो है हल्का सा नमक या शिला प्रपात मेंशन करते हैं क्या बोलते हैं काली मिर्च या नींबू या हल्का सा नमक डाल के करते हैं, तो वो जो है काम करता है। तो स्रोत वही हुआ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं सो हम भी जो हैं इसी तरह से देखेंगे, जो है कर्म करते हैं, वही सेम चीज जो कर्म करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अगर काम करते हैं तो क्या होता है, हम कर्म के बंधन में रहते हैं, हम फंस नहीं रहेंगे। वही सेम चीज जो है भगवान की, हमारे जो जो भी गतिविधि हम भौतिक संसार में कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी वो करते हैं तो कर्म के बंधन में फंसते हैं, और उससे पहले कभी कभी हम नियम कानून भी तोड़ते हैं। तो हम क्या रहते हैं, उससे क्या होता है, हम बार बार उसके बंधन में पड़ते हैं। लेकिन वही भौतिक गतिविधियां जब हम कृष्ण भावना अमृत की तरफ ले लेते, जैसे कृष्ण प्रसादम है ना, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं खा रहे हैं, भगवान के लिए हम कर रहे हैं, जब भगवान के कारण के लिए हम श्रवणम कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हम तो ये क्या कर रहे हैं, हम भी वही सेम चीज कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे हैं, अभी मान लीजिए आप काम कर रहे हैं ना, लास्ट कक्षा में उदाहरण दिया था, आप काम कर रहे हैं, बीच में 1 घंटा के बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो आप जब जब करते हैं तो फिर क्या था, वो कृष्णामय काम हो गया। आप काम जो है कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं। है ना, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अब मंदिर है, अब जो है कल हम लोग जो है जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो ये मंदिर क्या है ना, मंदिर बनाने में क्या हो रही है। अब देखिए मंदिर बनाने में भी अगर आप ध्यान देंगे, बहुत लोगों ने कहा कि मंदिर बनाने में दान दक्षिणा देंगे। है ना, घर बनाने के लिए भी जो सामग्री लगती है सेम लगेगी, मंदिर बनाने में भी जो है सामग्री लगेगी वही सेम लगेगी, सेम वही बालू, वही सीमेंट, वही पत्थर, वही ईंट, और सेम जो है लेबर भी सेम लगेगा, सेम है। उसी तरह बिल्डिंग भी जो खड़ा होगी, आपको जो बिल्डिंग में रहना है वही रहेगा, मंदिर की भी जो बिल्डिंग है सेम रहेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कौन बता सकते हैं। मंदिर भगवान के कार्य में लग रहा है और वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बन रहा है प्रभु जी। बिल्कुल सही सर, बात माता जी। अंतर क्या है कि हम उस घर में अपने रहना चाहते हैं इंद्र तृप्ति के लिए, और मंदिर में जो है भगवान को विराजमान करना चाहते हैं। अंदर बस यही चीज का है, हम अपने लिए जो भी कार्य किया जाता है
है ना। वही अंतर है। तो हम रहेंगे जब हम भगवान के लिए जब काम करते हैं तो ये क्या करता है, चिकित्सा का काम करता है। क्यों चिकित्सा का शिला प्रपात बोल रहे हैं चिकित्सा का काम करता है, क्योंकि हम सभी हैं यहाँ पे इस भौतिक संसार में रोगी हैं। और रोगी अगर फिर से दूध, पेट खराब हुए दूध पिएगा तो फिर से और खराब होगा, दही लेना पड़ेगा। तो दही के यहाँ पे भगवान के कोई भी कार्य किया हुआ जो है वो कृष्ण के लिए करता है। तो हमें अपनी जो ऊर्जा जो है वही सेम चीज को ईटा पत्थर और दूसरे चीज में जो है, जिसको यहाँ पे कहते हैं इंद्र तृप्ति, उसमें चीज के लिए जो है नहीं बिताना चाहिए। हमारे जो सेम जो ऊर्जा जो है वो भगवान के लिए हम देते हैं। अपने घर में क्या बनाएंगे, एक हॉल बनाएंगे, वहां पे गाना चला के डांस करेंगे। वही जो है सेम एनर्जी जो हॉल बनाएंगे जहाँ पे जो है भगवान का कथा होगा, भगवान रहेंगे, तो वहाँ पे क्या रहता है, वो कीर्तन हो जाता है। सेम एनर्जी जो हम करते हैं सेम रहता है। तो उससे क्या रहेंगे, आप जो है कर्म के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम जो है जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इस तरह से जो है आप अपने घर में अगर डांस करते हैं हॉल में, हॉल बोलते श्रील बहुत एग्जाम्पल देते हैं, हॉल टू हेल। अगर हॉल में डांस करते हैं तो क्या रहेंगे, नरक जाएंगे। अब वही मंदिर के हॉल में डांस करेंगे तो क्या होगा, आप जो है नरक से नहीं स्वर्ग जाएंगे। तो इस तरह से जो है मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यही सीक्रेट है, यही रहस्य है कि जो भी आप काम करते हैं भगवान के लिए करते तो रहते हैं। तो देखिए भगवत गीता के आज जो हम अभी जो श्लोका पढ़े, भगवत गीता के 3.5 में बोलते हैं कि हम सभी को प्रकृति के गुण के अनुसार देखिए, है ना। कभी कभी जो रहते हैं व्यक्ति के जो गुण जो रहते हैं प्रकृति के गुण से जो जाते हैं, तो उससे जो है वो अलग नहीं हो पाते हैं ना। उसके जोर जबरदस्ती जो है काम करता है। कभी कभी आप कितने जन ने महसूस किया कि हम नहीं चाहते वो करने के लिए फिर भी हम करते हैं वो। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी को जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप सभी को मैं उदाहरण देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आप लोग जो है इसके ऊपर हम लोग क्लास लिए हुए थे। ओके, यहाँ पे ये श्लोक जो है आप देखेंगे, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ऊपर का श्लोक, मुझे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताएंगे आपको सभी को दिखेगा तो ठीक है। दिख रही यस प्रभु जी, दिख रही है। है ना, दिख रही है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इससे अर्थात क्या है, कौन समझाना चाहेंगे, आपको जो भी समझ में आता है कौन बताना चाहेंगे। ये जो शरीर है किसी न किसी कर्म में लगा रहता है, चाहे खाली बैठे हो तब भी कुछ ना कुछ मेंटली भी चलता रहता है दिमाग में कुछ ना कुछ। और प्रकृति के तीन गुण जैसे तमो रजो या सतो गुण में कुछ ना कुछ हम काम करते ही रहते हैं। असली कार्यकर्ता कौन करता है, आत्मा। आत्मा करती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि आत्मा जो है वो जो रतिकार करता है, और शरीर तो एक क्या है, मृत शरीर के एक वाहन की तरह जो है। तो आत्मा जो रहता है वो उसको जब तक जिस कार्य में नहीं लगाएंगे तब तक वो जो है खाली बैठ नहीं सकता। बोलते हैं ना खाली बुद्धि शैतान की बुद्धि। जब आप उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर जो रहता है प्रकृति के तीन गुणों को जो है वो लांग सकता है। और इस तरह से जो है व्यक्ति जो है शास्त्र के अनुसार जो भी काम करते हैं उसको कर्म करते हैं, और शास्त्र के अगेंस्ट करेंगे तो विकर्मा कहते हैं। तो अब देखेंगे जो आत्मा का जो स्वाभाविक रूप से जो रहता है वो अपने लिए जो है काम करता है। ये श्रीमद् भागवतम में भी मेंशन है। मैं आप कुछ को जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। अब देखिए क्यों यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है अपने प्रकृति से अर्जित गुणों के विवश होकर काम कर्म करना पड़ता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ओके, आप जो इस जगह में जन्म लिए थे, या आप पहले से डिसाइड किए थे, कितने लोग हैं यहाँ पर, नहीं प्रभु जी। मुझे नहीं 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 प्रभु दिखाई। जी। जन्म लेने से पहले आपने डिसाइड किया था कि मुझे इस जगह जन्म लेना है। नहीं। नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं। तो यहाँ पे यहाँ इस श्लोक में भगवान वही बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। हम बोलते हैं अपने कर्म के अनुसार जो व्यक्ति जो रहता है अपना मेहनत करते हैं। किसी को यहाँ पे जाना रहता है, ये यूएसए अमेरिका रहते हैं तो बोलते हैं हाँ मुझे वहाँ जाना है, नहीं रहते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिए, कितने आप लोगों ने जो है
जन्म के लिए अपना जो है बोला था कि मुझे इस शहर में जन्म लेना है, आप नो, चूज करके आए थे? नहीं प्रभु जी। बोले थे कि हाँ मुझे नहीं शिफाली माता प्रभु जी जी। के घर में पैदा लेना है। कोई आए थे? नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु प्रभु जी। जी, बाय डिफॉल्ट। ओके। आप लोगों में से कितने लोग जो हैं अपना नाम स्वयं रखे थे जब आप पैदा हुए थे? बोले तो मेरे नहीं, को ये नाम चाहिए। वो भी नहीं रखा प्रभु जी अपने आप। किसने नाम रखा था? दूसरों ने रखा माँ प्रभु जी। बाप ने। माँ बाप, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये है ना? तो अब देखिए, फिर आपको जब जन्म हुआ था तो आप कितने व्यक्ति को मालूम था कि आपकी जो है इसी से शादी होने वाली है? केवल नहीं, भगवान को पता था प्रभु जी। लता माता जी, भगवान को पता था। कितने भगवान को लोग पता पहले था से? प्रभु जी, लेकिन दूसरे इंसानों को कोई पता नहीं था ना। हम्म, है ना? तो शादी भी होती तो उससे चीज भी हम नहीं देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, कितने आप में से यहाँ पे जो व्यक्ति जब थे, जब आपको पहला जॉब मिला था, तो आप पूरा पूरा प्रोत्साहित थे या कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ मुझे ये जॉब मिलेगी ही मिलेगी? जो जॉब किए हैं अधिकतर प्रभु या माता जी, नहीं प्रभु जी, अनसर्टेन था। है ना? कितने कितने इंटरव्यू देने के बाद मिला पहला जॉब? या कितने लोग हैं यहाँ पे जो पहला इंटरव्यू दिए उनको जॉब मिल गया? प्रभु जी मिल गया था, बट तब भी सर्टेन नहीं थे कि वी विल गेट दिस जॉब और नॉट। ओके। तो यहाँ पे देखेंगे, भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जो है जो भी चीज होता है प्री डिस्टाइंड रहता है, उसी को कर्म बोलते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे उसके अनुसार होता है। इसलिए बोलते हैं कि इसी कंडीशन को जो है हम जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसी को कर्मा कहते हैं। जो आपने पूर्व जन्म में या पूर्व जन्म में इस भौतिक संसार में भी जब आप कर्म करते हैं, तो उसके फल को जो पाते हैं इसी को कर्म कहते हैं। पिछले शनिवार को हमने देखा था कि कर्म जो रहते हैं दो प्रकार के होते हैं ना। कर्म जो रहते हैं, अब पिछले रहते हैं ना, एक मिनट दिखाता हूँ इसमें। दोनों जो हैं रिलेटेड है। तो हम लोग कहते हैं कभी अच्छे कर्म रहते हैं, कभी बुरे कर्म करते हैं। तो अच्छे कर्म क्या होता है? अच्छे कर्म अगर आप करते हैं तो फिर क्या रहते हैं? पुण्य कर्म बोलते हैं उसको, है ना? आप अच्छे घर में पैदा लेंगे, अच्छे परिवार में आप बहुत धनी बनेंगे। आप 1 करोड़ रुपए का सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि 1 करोड़ रुपए तो कभी देखा भी नहीं है। बहुत सुंदर होंगे, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और इस तरह से फिर क्या रहता है? दूसरा जो रहता है, आप पवित्र गतिविधियां अगर करते हैं तो क्या रहेंगे? आप जो है, हम सभी जो है माँ के घर में घुसेंगे। तो हमें ये समझना है कि जितने भी लोग, हम सभी जो हैं, हम सभी दूषित हैं। हम सभी दूषित हैं। हम हमारे अंदर जो है बुराई गुण है, तभी हम इस भौतिक संसार में जन्म लिए हैं। और हम सभी जो है माता के घर में, चाहे हम मनुष्य बन के चाहे जानवर बन के हम जन्म ले रहे हैं। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, इससे जो है कोई भी व्यक्ति जो है बच नहीं सकता। हम सभी को जो है अपने पूर्व जन्म का अच्छा फल भोगना पड़ता है, और जिसके कारण जो है 4 तरह का जो है दुख को जो है भोगना पड़ता है। तो कर्म जो हो गया, ये अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं, ठीक है? फिर हम देखेंगे कर्मा क्या होता है। तो हम बोले कि जो भी एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन होगा, मतलब जो भी क्रिया आप करते हैं उसका क्या होता है? ये प्रतिक्रिया होता है, ठीक है? अब देखेंगे कि किस तरह से हम जानेंगे कि कौन अच्छे कर्म है कौन बुरे कर्म है। तो इस फोटो में से कौन अच्छा कर्म है कौन सा बुरा कर्म है? राउंड वाला येलो कलर वाला ये अच्छा कर्म है। और ये हॉर्न्स वाला जो है वो बुरा कर्म है। तो वो बोलते हैं ना, तो एक पूरा कर्म। मनुष्य के अंदर ही में रहता है, अच्छे ख्याल भी आते हैं बुरे ख्याल भी आते हैं। तो भगवान जब भी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो भगवान जो है क्या बोलते हैं, है ना, उसके बारे में अच्छा भी रहता है। जो भी कार्य आप करने जाएंगे तो भगवान अंदर से जवाब आपको देते हैं कि आपको क्या सही करना है या बुरा करना है। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? तो ये शास्त्र के अनुसार जो बोलते हैं, तो ये दोनों में से कौन सा अच्छा कर्म है कौन सा बुरा कर्म है? चैरिटी वाला अच्छा कर्म है। सेकंड चैरिटी अच्छा चैप्टर। है, ये कहाँ कैसे मालूम चलता है? वो प्रभु जी हेल्प कर रहे किसी हैं, और दूसरों के की लिए कुछ हेल्प कर काम रहे कर हैं। रहे हैं। ये हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है। कैसे मालूम चलता है कि अच्छे कर्म है कि नहीं है? सोच में। कौन डिसाइड करता है? आप सभी प्रभु बोल जी रहे हैं। कुछ भी काम भगवान से रिलेटेड है तो अच्छा काम अच्छा कर्म है प्रभु जी। जो भी भगवान से रिलेटेड है वो अच्छा कर्म है, जो भगवान से रिलेटेड नहीं है बुरा कर्म है।
यही है। तो ये कौन डिसाइड करता है यहाँ पे देखेंगे। जब मान लीजिए जिस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, तो अब दान दक्षिणा करते तो अच्छे काम बोलते हैं, अब ये चोरी करेगा तो इसको जेल में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं ये कर्म नहीं है। तो क्यों है? कौन बनाता है? ये हमारा संविधान बनाता है। हम जिस कानून में रहते हैं उसको बोलता है कि चोरी करना पाप है ना। आज जो बोले मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, तो क्या करेंगे? किसी के मान लीजिए दीप्ति माता जी के घर में जाकर चोरी कर लेंगे, बोलेंगे फिर खाना खा लेंगे, तो वो क्या सही है या गलत है? मुझे भूख लगा है ना, तो मैं तो दूसरे के घर में भी जाके चोरी करके खा सकता हूँ। सही है या गलत है? गलत है प्रभु जी। गलत है प्रभु जी। है ना। तो गलत है। तो यहाँ पे भी देखें, जिस तरह संविधान हमारा रहता है, जिस भारत में रहते हैं, जहाँ जो उस देश में रहती है संविधान हो गया, उसी तरह प्रकृति का भी तीन गुण होता है ना, जो बनाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो बोलते हैं, जिसको गुड कर्मा बैड कर्मा जो बोलते हैं, अच्छे कर्म बैड कर्म है, ये शास्त्रों में हमारा मेंशन है। और शास्त्र कौन बनाता है? शास्त्र जो है, प्रकृति जो है, भगवान बनाते हैं। और भगवान के जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण रहता है, जो प्रकृति के तीन गुणों से जो है चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो हम देखते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो क्या रहेंगे, अभी हमने देखा था ये स्लाइड में भी। अच्छे कर्म करेंगे तो यही सेम चीज रहेगा, आप जो है बहुत धनवान रहेंगे, अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, आपको जो है हर चीज मिलते रहेगी, आपका यशगान होगा। ये सारे चीज जो है आपके अच्छे कर्म के जो है, आप बहुत दिखने में सुंदर होंगे। ये सारे चीज जो है आपके अच्छे कर्म के है कि आपने अच्छे कर्म किए इसलिए जो है वो हुआ। बुरे कर्म करते हैं तो फिर क्या होता है? कभी कभी बोलते हैं ना, बचपन से क्या अपाहिज हैं, क्यों हो रहा है? बोलते हैं कैंसर हो गया है, या पेट में जो है गैस है, ये सब है, क्यों है ये सब, क्यों होता है? दूसरा देखेंगे, केस चलते जा रहा है, कोर्ट कचहरी का केस है, जितना भी बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं वो ठप ही हो रहा है। कभी कभी बोलते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सब कुछ नसीब की बात नहीं है, आपने जो भी किया है वो बस रिटर्न आ रहा है। इसको जो है बुरे कर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे है ना, इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पे बोलते हैं बाय व्हाट काइंड ऑफ एक्शन डज वन अर्न गुड कर्मा। तो यहाँ पे हम कैसे अच्छे कर्म को कमा सकते हैं? तो गुड कर्मा मीन्स व्हाट इज प्रिस्क्राइब इन द वेदास। यहाँ पे अर्थात ये हुआ कि वेद में जो मेंशन है उसी को कर्मा कहते हैं। और जो वेद से विभिन्न जो है वो क्या हो गया? विकर्मा है। अब शिला प्रपात बोल रहे हैं कि वन शुड परफॉर्म यज्ञ। यज्ञ मीन्स एक्शन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड विष्णु द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसका अर्थात हो गया, यज्ञ का मतलब भगवान के लिए करते तो इसको क्या बोलते हैं? कर्मा कहते हैं। तो भगवान श्रील प्रपात जो है यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे श्रील प्रपात बोलते हैं कि ये विटनेस कौन है, जज कौन है, कौन डिसाइड करता है? जब हम चोरी करते हैं तो जज बोलते हैं ना, कटघरा में सामने करते हैं, पुलिस को बुलाता है, किसने देखा? दीप्ति माता जी के घर में मैं जाके चोरी करूंगा तो कौन बोलेगा? दीप्ति माता जी बोलेगी कि मैंने देखा, या बोले सीसीटीवी में कैमरा में था। तो यहाँ पे जो है जज जो है डिसाइड करता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि इसी शरीर में एक जो है दिव्य भोक्ता जो है, जो भगवान जो परमात्मा रूप में जो रहता है, जो सारे चीजों को देखते रहता है, उसी को भगवान है जो सारे रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसलिए जो बोलते हैं ना, अच्छे कर्म बुरे कर्म भगवान आपको अंदर से ही बता देते हैं कि क्या आपने किया है। हम कभी कभी किसी को जाके बोलेंगे नहीं कि मैंने गलती किया है, लेकिन आपको अंदर अंदर में जो है वो भगवान आपको बताएंगे क्या आपने क्या किया है। तो भगवान जो है परमात्मा रूप में जो है सभी के हृदय में चतुर्भुजा फॉर्म में जो है विराजमान रहते हैं ना। अब देखें, अब हम लोग जान गए हैं कि कर्मा क्या होता है, अच्छे कर्म है बुरे कर्म है। सभी से पूछेंगे कि आपको अच्छे कर्म चाहिए या बुरे कर्म चाहिए? कितने लोग हैं यहाँ पे उसको बुरे कर्म चाहिए? किसी को नहीं प्रभु जी। कोई है जिनको बुरे कर्म चाहिए, जो बोलेंगे मुझे कुंती महारानी की तरह कल हमने पढ़ा था कि मुझे जीवन में सिर्फ दुख चाहिए? कोई है यहाँ पर? सभी सो नहीं, रहे हैं क्या? किसी को भी नहीं है। किसी को नहीं चाहिए प्रभु जी। सबको अच्छे कर्म चाहिए। सबको अच्छे कर्म चाहिए। सब गंगा जी में नहाने जाते हैं, अब बुरे कर्म धोते हैं, पुण्य कर्म सबको रखना है ना। तो यहाँ पे शास्त्र में बताते हैं कि किस तरह से हम अपने बुरे कर्म से जो है हट सकते हैं। तीन रहस्य हैं, आप सभी जो है याद कर लें। ये तीन रहस्य को आप जो है देखेंगे तो आपके बुरे कर्म जो है हट जाएंगे। पहला रहस्य क्या है? जो भी आप काम करते हैं वो कृष्णा भावना अमृत में करें। कृष्णा भावना अमृत में अगर आप काम करेंगे तो फिर क्या होगा? आपको ना तो पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा। गंगा में आप जाते हैं नहाने के लिए तो क्या होता है? पुण्य रह गया, पाप चला गया। यमुना नदी में आप स्नान करेंगे तो पुण्य भी जाएगी, पाप भी चले जाएंगे।
तो जब दोनों से निपक्ष हो जाएगा तभी आप भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होगा, अभी हमने देखा अगर आप पुण्य करते हैं तो फिर क्या होगा, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ पे लेंगे, आप अच्छे कर्म किए तो फिर क्या रहेंगे, बहुत अमीर रहेंगे। अब जैसे कभी कभी आज माता जी से किसी ने कहा कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो फिर से हम भक्ति से दूर हो जाएंगे, फिर से भगवान में से दूर चले जाएंगे। तो हम अच्छे घर में जब जन्म लेंगे तो क्या रहेगा, उसी में हम रहेंगे, आनंद लेना है ना। सुंदर रहेंगे तो फिर क्या रहेगा, हम इतना सुंदर हैं, मेरे पीछे इतने जन हैं। जब ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तो क्या रहेगा, उसमें भी अहंकार ही आता है कि हम इतने पढ़े लिखे, कितने लोग नहीं है। तो ये जो है पुण्य कर्म के अनुसार जो है आप यहाँ पर आप पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हाँ, पुण्य या पाप से जो है नहीं करके हमें जो है जो भी आप काम करते हैं वो भगवान के लिए करेंगे, तो वो जो है कृष्णा भावना अमृत बन जाएगा। तो ये कृष्णा भावना अमृत जो हमने पिछले कक्षा में भी हमने डिस्कस यहाँ पे किया था, कौन सा था ये वाला श्लोका, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो उसकी इंद्र मुख से भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे हम किस तरह, यहाँ पे हमको अपने तरह से भगवान के लिए कर्म करना है। हम जो भी खाना बना रहे हैं खा रहे हैं वो केवल पाप खा रहे हैं, भगवान यही बता रहे हैं, है ना। क्यों लिए हम भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तो यहाँ भगवान श्री बोल रहे हैं अनजाने में किया गया पाप, जैसे खाना भी बनाते हैं ये दो तरह का होता है, एक जान के पाप करते हैं, एक अनजाने में कर रहे हैं। जब आप सभी को ज्ञान हो गया कि हमें जो है आ, एक व्यक्ति रहता है, कभी कभी हम लोग स्कूल में थे ना तो बोलते थे आपने क्यों किया, बोलता है मुझे नहीं मालूम था। एक व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है फिर भी वो काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पाप में ही आता है, जान के करने वाला। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जिसे कर रहे हैं, इतने पशु पक्षी और सभी क्या कहते हैं इसमें, सब्जी में भी जीव रहते हैं, उनकी हत्या हो रही है तो इसलिए जो है रहते हैं। तो भगवान के लिए जब काम करते हैं तो फिर जो है यही सेम खाना जो रहता है आपको पाप जो है नहीं मिलता। ये भगवान का जो है पकवान जो है प्रसाद बन जाता है, आप कृष्ण भवनामृत में जो है भर जाते हैं। ये पहला रहस्य है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 तरह का जो कर्म जो हम जो अभी डिस्कस किए, कर्मा करता के आप अच्छे कर्म करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको आप आनंद लेते हैं। आप आनंद लेंगे, है ना। क्या किए, आप आनंद लेने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है। अब विकर्म अगर करते हैं ना, जो शास्त्र के अनुसार है, आप पाप करते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके कारण विकर्म के कारण जो है आपको जो क्या करता है उसका दंड भोगना पड़ता है और उसके बाद भी फिर से आपका जन्म होता है। लेकिन अगर आप आकर्मा करते हैं तो फिर क्या रहता है, इसको आप कर्म करते हुए भी आकर्म हुआ। अब जैसे आप बता रहे थे उदाहरण के तौर पे कि जैसे कोई व्यक्ति है मंदिर बना रहा है और एक व्यक्ति जो अपना घर बना रहा है, दोनों में ही मंदिर बनाना आकर्मा क्यों आता है, क्योंकि वहां पे भगवान बोलते हैं वो कर्म कर भी रहा है फिर भी क्या रहता है, कार्य ऐसा प्रतीत होगा कि कार्य नहीं कर रहा है। और इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए इसको आनंद मिलता है, यहाँ पे इसको जो है बुरा चीज मिलता है। अब यहाँ पे आकर्मा अगर कोई व्यक्ति करता है तो हमेशा वो जो क्या रहेगा, आनंद में रहेगा। और कर्मा और विकर्मा करिएगा, अच्छे या बुरा कीजिए तो आपको फिर से क्या रह रहा है, यहाँ पे आपको जन्म लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमने देखा ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो है आप फंस नहीं सकते हैं ना। लेकिन आकर्म अगर कोई करता है तो क्या होगा, भगवान के धाम जो है आप चले जाएंगे, ठीक है। ये 3 तरह का कर्म जो भी हम डिस्कस किए। फिर दूसरा क्या है, सीक्रेट रहस्य क्या है, कि हमें भगवान की सेवा में जो है सेवा में भगवान करना है। तो अभी ये जो हम लोग ये श्लोक अभी अभी पढ़े, निष्काम कर्म योग, है ना। अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा, कहाँ गया, यहाँ पे निष्काम है ना, सॉरी कहाँ गया, ये कोई पढ़ेंगे फिर से, अर्थ क्या है इसका, यहाँ पे तात्पर्य पर है इसका, कोई एक बार फिर से। मैं पढ़ दूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशेष सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञ यज्ञो व विश्राम विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न कर रहे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसे कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का ही उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है।
वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पुरा पुमान विष्णुराराध्यते विष्णु पुराण। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस बहुत जगत में महत्वपूर्ण किए पॉइंट जाने है, वाला देखिए। किनके प्रसन्नता के लिए काम करना है? भगवान के लिए करेंगे भगवान तो के फिर लिए होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना में होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त हो रहता है। यही मान कर्म कौशल है, और प्रारंभ से इस विधि के में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में ये यह साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे बोल कृष्ण रहे हैं प्रभु जी। यज्ञ अर्थात कर्म, तो ये भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? कर्म के इस भौतिक जगत में हम क्या रहेंगे? बंधन में फंस रहे हैं। देख रहे हैं कितना बार। हाँ, या तो अच्छा या तो बुरा रहेगा। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए जब हम नियत कर्म करें, इसी तरह से हम बंध जो है क्या रहेंगे? आपका जो कर्म है ये क्या बन जाएगा? निष्काम कर्म योग बन जाएगा, मतलब आपका भक्ति योग बन जाएगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? भक्ति में, सेवा में जो है कर्म करना है। ठीक है। अब देखेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को बता रहा था पिछले कक्षा में, कि कर्म भी जो रहता है ना, अलग अलग श्रेणी में रहता है। तो भक्ति रसामित्र सिंधु जो है इसमें बताते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो पाप जो है चार तरह के गतिविधियों में आते हैं, है ना। तो उदाहरण के तौर पे अब देखेंगे, हम लोग समझने का इसको कोशिश करते हैं कैसे होता है ये चीज़, है ना। जैसे मान लीजिए आम सभी खाए हैं यहाँ पर। जी प्रभु जी। प्रभु जी। एक नहीं खाया, दो नहीं खाया, सुरेश प्रभु, बाकी सभी सो रहे हैं। नहीं प्रभु जी, काया है प्रभु जी। अच्छा, बाकी लोग नहीं खाए हैं। हाँ प्रभु जी, हरे खाए कृष्ण सब प्रभु लोग। जी, आए प्रभु मान जी। लिया प्रभु जी। अच्छा, खाना खा आए लिए या प्रभु आम जी। खा लिए? जब सीजन था तब खाया प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, अमरूद लाए थे प्रभु जी। अच्छा ठीक है, मैंने आम का बोला, अमरूद का नहीं बोला। ठीक है। तो देखेंगे जो भी फल खाते हैं, मान लीजिए अमरूद लीजिए, आम लीजिए, जो भी लीजिएगा, ठीक है। तो क्या रहता है, वो जो फल बनता है तो पहले आपको बाजार में जो खरीदने जाते हैं, सीजन जो रहता है, अब जैसे बताएं, तो वो आपको मिल जाती है बाजार में। कैसे रहता है? उसके सीजनल अंदर रहता है एक प्रभु बीज जी। रहती है। सीजनल है, हाँ प्रभु जी। बीज रहती है, बीज को क्या करते हैं? लाके जमीन में रोपते हैं, है ना। जमीन में रोपते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं? खाद देते हैं, पानी देते हैं, तब क्या होता है? वो जो है पौधा बनता है। पौधा बन के फिर कुछ समय के बाद वृक्ष बनता है। वृक्ष बनने के बाद कुछ साल लगता है। आजकल तो कुछ आम होते हैं जो सीजनल रहते हैं, हर एक साल में ही दे देते हैं। लेकिन देखते हैं स्टार्टिंग में जो रहता है, वो बहुत सारे पौधे जो रहते हैं वो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल टाइम लगाते हैं, और फिर जो है वृक्ष जो है क्या होता है? बड़ा होता है। और फिर जो उसके ऊपर क्या होता है? फूल आते हैं, मंजरी बोलते हैं जिसको, मंजरी आते हैं, उससे टिकोला होता है। टिकोला होता है। अब टिकोला जो रहता है, आप टिकोला खाएंगे तो खट्टा रहेगा, मीठा नहीं रहेगा। वो टिकोला बड़ा होता है, फिर बड़ा होकर पकता है फल में, या फिर उसको तोड़ेंगे तो फिर आपको जो है उसको खा पाएंगे। तो देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में शिला प्रभुपाद रूप गोस्वामी जो है बताते हैं कि भक्ति जो है, ये भक्ति अमृत, नेचर ऑफ डिवोशन जिसको बोलते हैं, भक्ति रसामृत, भक्ति को अमृत के समान है। तो पद्म पुराण में मेंशन है कि वास्तविक में जो है हमारे जो पाप जो रहते हैं, आकर्मा जो है, या सॉरी विकर्मा जो है, ये व्यक्ति कभी कभी कहते हैं ना कि मैं क्यों इतना तकलीफ में हूँ, है ना। या कभी कभी हम कहते हैं कि अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा। तो यहाँ पे शास्त्र में जो है ये बताते हैं कि पहला जो रहता है ना, सब्टल इम्प्रेशन। सब्टल इम्प्रेशन का यहाँ पे अर्थात है सूक्ष्म प्रभाव, है ना। आप जो भी आप गलत काम करते हैं, सबसे पहले जो है मन में आता है ना। जो अभी हम लोग भगवत गीता 2.62 और 63 में जो है इसको पढ़े थे, उसमें क्या बोलते हैं? कोई भी गलत कार्य करने के लिए, कोई भी अच्छे कार्य हो जो भी रहता है, सबसे पहले आपका मन में जो है वो ख्याल आता है। हम देखते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति है किसी को बुरा काम करने जाता है,
किसी को मारने जा रहा है या जो भी काम करने या किसी को अपशब्द बोलता है, वो उसको करने से पहले उसके पहले मन में चलते रहता है, बोलना है कि नहीं बोलना है, करना है कि नहीं करना है, चोरी करना है कि नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रभाव बोलते हैं। तो यहाँ पे है ना, पाप प्रवृत्ति जो रहता है हृदय में संस्कार के रूप में क्या रहता है, विद्यमान रहती है ना। पाप करने की जो प्रवृत्ति रहती है वो हृदय में और मन में जो रहता है एकदम सूक्ष्म में रूप में रहता है। आप जो है अभी आपकी वो जन्म हुआ है, आप जो है क्या रहते हैं, बाजार से खरीद के जो लाए हैं बीज को जो है वो अभी लाने से पहले की वो है, मतलब आपके आए हैं। दूसरा जो हो जाता है, जो कर्म जो रहते हैं वो उस करता है, सोचते गए सोचते गए सोचते गए, फिर दूसरा में जो है बीज रूप में आ जाते हैं। बीज रूप में का यहाँ पे मतलब है कॉन्क्रीट डिजायर्स और टेंडेंसी दैट कैन लीड टू सिंफुल एक्शन, मतलब अर्थात यहाँ पे ये हुआ ठोस इच्छाएं। अब जो है जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि मान लीजिए जब छोटा था तो पिताजी थे क्या करते थे, आइसक्रीम मेला में घुमाने के लिए ले गए, ठंडी की सीजन है आइसक्रीम देखें। अब खाने की जो क्या होती है उसकी इच्छा हुई, है ना, इच्छा हुई, फिर अब जब तीव्र गति हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं उसकी इच्छा जो एकदम ऊपर हो जाती है, बोलती है, नहीं पापा अब मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो ये कहते हैं ठोस इच्छाएं या प्रवृत्तियां पाप पुण्य कार की ओर जो रहता है वो ले जा सकती है, कि हाँ अब मेरे को जो है बीज अब जो है अंकुरित हो गई, आप जो है आप रोप दिए हैं, आप जो है इच्छा जो है वो आगे चल जाएगा। आप रोप दिए मतलब आप पाप जो है आप कर दिए हैं। ठीक है। तीसरा जो होता है, आपको जो है आप जो आप पाप करेंगे या अच्छा हो या बुरा जो भी रहता है, वो क्या करते हैं, अब जो है अब पक गया, अब जो है आपको मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, कर्म हो गया है लेकिन प्रतिक्रिया जो है अभी तक आपको जो है सामने नहीं आई है ना। हम कभी कभी देखते हैं ना, नेक्स्ट जो है हम ये दोनों का उदाहरण देंगे, समझ में आएगा आप कभी कभी, है ना। और जो होता है तू चौथा जो रहता है क्या हो गया, ये मैच्योर हो गया, मैच्योर का मतलब जो है वो प्रौध हो गया, वो जो है पक गया है ना। तो क्या होता है, कर्म जो रहता है, कर्म को जो है दो दुख के रूप में जो है वो प्रकट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कभी कभी आप जो है, हमारे जो चार तरह का जो ये जो दुख है जो पाप में जो करते हैं, या तो आपके जो है इस श्रेणी में है, या तो अभी आपके मन में हृदय में है उस रूप में जो पाप जो है अभी पनप रहा है। दूसरा जो है वो बीज के रूप में आ गया, तीसरा जो है आपको अब मिलने ही वाला है, आप बस प्रतीक्षा कीजिए। अब जो है एक मिल गया उदाहरण, जैसे ये तीसरा चौथा का जो है, कभी कभी मान लीजिए शिफाली माता जी, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ ना, शिफाली माता जी को मैं जो हम गाली दे देता हूँ या कुछ बुरा भला कर देता हूँ या है ना, तो क्या रहेंगे माता जी ये एक दो बार सह लिए या कुछ नहीं बोले, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, मैंने पाप किया, अब जो पाप जो मैंने किया उसका फल जो है मिलेगा, आज ना कल जो है वो मिलेगा। जैसे चोर रहता है ना, क्या करता है, एक चोरी करता है, फिर बोलता है कि मैंने चोरी कर लिया, चोरी करने से किसने बोला, पुलिस पकड़ लेता है, पुलिस तो नहीं पकड़ पाया, देखो मैं कितना शातिर चोर हूँ, मेरे को कोई नहीं पकड़ पाया। तो आपने पाप कर दिया है, हाँ आपका जो है फल आज ना कल जो है मिलने वाला है। पांच छह बार करता है, छठा बार में जो है पकड़ा जाता है। दूसरे बार में मान लीजिए शिफाली माता जी दयावान है, वो नहीं कुछ बोली, मैं दीप्ति माता जी के पास चला गया, दीप्ति माता जी को फिर वही सेम चीज गाली दूंगा, तो दीप्ति माता क्या करेगी, एक थप्पड़ मार देगी, है ना। एक थप्पड़ मार गया तो क्या हो गया, फल जो है पक गया, तुरंत वहीं पे मिल गया, इंस्टेंट। जैसे उदाहरण जो स्टार्टिंग के क्लास में दे रहे थे, जो हम खाना जो खाते हैं, तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले क्या बोलता है, रात में क्या खाया था, तो वो अभी खाएं, सुबह में जाके 12 घंटा के बाद जाके जो है कर्म का फल आपको मिला। तो इसी तरह कभी कभी जो रहते हैं इसी जीवन में जो हमको याद रहता है कि हमने अच्छे या बुरे कर्म किए थे, जैसे उदाहरण पे अगर हम बुरे कर्म का हम कभी भी याद नहीं रखते हैं, है ना। जब भी हम कहते हैं कितने साल मेहनत किए, जॉब लग जाती है तो बोलते हैं अरे मैंने मैंने किया था, अहंकार में कि मेरा हो गया, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि वो भगवान देते हैं। तो उसी तरह से जो भी आप अच्छे काम करेंगे, बुरे काम करते हैं, तो ये चार जो बीज जो रहते हैं, चार तरह के जो रहते हैं, चार स्टेज में रहते हैं। भक्ति रसमृत सिंधु में कहते हैं कि जब आप भक्ति करते हैं तो ये बोलते हैं चारों स्टेज में कहीं पे भी आपके कर्म हो, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। जो आपके मान लीजिए, आप जब भक्ति कर रहे हैं, आप देखेंगे आपके जीवन में जो है लिखा हुआ था कि एक्सीडेंट होने वाला है, कल आपका पैर कटने वाला है, क्योंकि आपने भक्ति किया, तो आपका वहां पे जो भगवान जो एक पैर जो एक छोटा सा आ, क्या कहते हैं चोट दे देंगे। तो जो होने वाला भी था भगवान उसको भी टाल सकते हैं। ये भक्ति की जो है, कर्म की जो है महिमा रहती है कि जो है, यही रीजन है। तो आप जो है
अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है तो आप समझ लीजिए आप ये स्तर में हैं। आपकी जो है फल जो है ऑलरेडी पक गई है। आप जो है किसी न किसी व्यक्ति से जो है उस फल को आपको ये समझना है, उसको जो है भगवान के प्रसाद रूप में जो है उसको स्वीकार किया कि मैंने कभी ना कभी जो है कर्म किया था, किसी न किसी तरह से जो दूसरे व्यक्ति के रूप में जो है वो मुझे आ रही है। और उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है क्या रहता है, हाँ, क्या बोलते हैं, व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो फिर क्या रहते हैं हम लोग जो है उस कर्म का जो है वो खत्म नहीं होता कभी। वो व्यक्ति जो है एक माध्यम है, बस हमें ये समझना है ये हमारे ही खुद के कर्म हैं जो किसी न किसी तरह से जो है वो हमें आ रहा है। तो ये हम हमारे चौथे स्टेज पर हैं। अब जो है कभी कभी जो बोलते हैं ना, अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये व्यक्ति जो इतना कर रहा है तो उसके भी आने वाले हैं, उसने जो है अभी मन में किया, उसने बीज बो दिया है, कब मिलेगा वो भगवान पे छोड़ दीजिए। इसलिए जो है कभी भी आपके साथ अगर कोई बुरा करता है तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, उसके लिए बुरा जो है मत सोचिए। कभी कभी ये जो कर्म आप जो देखते हैं ना रहता है, हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं कि अरे ये व्यक्ति जो है सिर्फ बुरे कर्म कर रहा है ना, बुरे कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, और इसको कभी कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कोई बता सकते हैं? अभी तक वो फल पकना है प्रभु जी उसका। बिल्कुल सही। मान लीजिए रेखा माता जी, आप मेरे को मार दिए, ठीक है, मैं सुरेश प्रभु से जाके आपके पीठ के पीछे में जो बुराई कर रहा हूँ आपका, अब आप अच्छे नहीं है, मैं उदाहरण बस दे रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं उदाहरण ऐसे दे रहा हूँ, अच्छा तो नहीं हूँ, बट जब पीठ के पीछे में भी जब हम बात करते हैं तो उसके कर्म भी हमें पड़ते हैं। उदाहरण की तरह में जो है, जब पोर्टफोलियो जब बट रहा था देवी देवता में, कौन सा पोर्टफोलियो कौन लेगा, है ना? सूर्य देव ने कहा कि मैं सूर्य मतलब रोशनी प्रदान करूंगा, वायु देव ने जो बोला मैं वायु प्रदान करूंगा। तो जब कर्म के ऊपर आ रहा था टॉपिक, तो कर्म में जो है कोई देवी देवता नहीं लिया, तो वो किसको मिला? यमराज को मिला। यमराज को मिला। ये जो टॉपिक जो है कर्म कौन किसके हिसाब से किसके पास आएगा, ये कहना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उदाहरण के तौर में आप सभी जो है श्रीमद् भागवतम में आता है ये कथन जो है, कैसे रहता है कि मान लीजिए एक राजा था। राजा जो है पूरे गांव में जो है अनुष्ठान कराता है ना, बिरयानी बनाता है, सभी को जो है देंगे। ऊपर से जो रहता है एक चील आता है, नीचे में देखता है एक जो है सांप जा रहा है, सांप को पकड़ के जो है खींच लेता है ना, सांप को पकड़ के खींच लेता है, और फिर जो है ऊपर में चले जाता है। चील जो रहता है ऊपर में ले जाता है, ऊपर से जो है छोड़ता है कि वो उस तरह से मर जाए। अब चील जो है जैसे सांप को पकड़ रहा था, उसके मुंह से जो है मरने वाला था, तो मुंह से जो है विष निकला था, जहां बिरयानी बन रहा था वहां नीचे गिर गया। अब वो जो है खाना जो बिरयानी बना, सभी जो है विष रहा, उस खाने के बाद जो है सारे गांव वाले की जो है मृत्यु हो गई। तो अब इसका पाप का फल किसको मिलेगा, कौन बताएंगे? चील को। चील को। और कोई उत्तर? चील को क्यों? क्योंकि उसी ने वो सांप को पकड़ के लेके गया था ना, तब सांप के मुंह से विष विष निकला था। ओके। और कोई? प्रभु जी हरे वो कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी राजा को, अब बोलिए प्रभु जी। राजा जो फीस। कहानी सुना चुका हूँ वो नहीं हरे बोलेंगे। अच्छा, माता जी बोल रही है, शिवाली माता जी, राजा को मिलेगा। क्यों राजा को मिलेगा? क्योंकि राजा फीस्ट बनवा रहा था। राजा बिरयानी बना रहा था इसलिए उसको मिलेगा। हरे और कोई? प्रभु जी कृष्णा ये प्रभु कहना है, जी। प्रभु जी राजा महाप्रभु सभी को मिलेगा, जो बना रहा था, जो बना रहे थे, जो बनवा रहा था, जो लेके गया, जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया, सभी को मिलना चाहिए। ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं बोलूं। प्रभु जी, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से गलती किसी की नहीं है। चील वो उसी का, वो उसका भोजन है, उसका मतलब नेचर के हिसाब से वो ओमनीवोरस है, वो वही खाएगा। हम्म। जो कोई भी इस बात को लेके शिकायत करेगा किसी का, माता जी रुक पाप जाइए, उसी के मन। वापस हरे से। कृष्ण प्रभु जी। अब बहुत दिन के बाद आए हैं। अब प्रभु जी, असल में अब घर जो शिफ्ट कर गया ना, तो क्लास जहाँ पे जाते हैं वहां आने में टाइम बहुत लग जाता है। छह ना, सात किलोमीटर है, तो जाम में फंसते फंसते आते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए और किसी का क्लासेस कुछ दूर हो गए। दूसरा उत्तर है? अब समय हो रहा है, मैं प्रभु थोड़ा जी, पढ़ता हूँ। प्रभु जी प्रभु जी इसमें जो पिछले जन्म का फल मिला पूरे गांव वालों को, मैं ये कहना चाहूंगा। ओके ओके।
और कोई माता जी प्रभु जी जो सो रहे व्यक्ति हैं उठ गए? पिछले पाप का उसका उसका रिएक्शन अभी फलित हुआ। उसका फलित हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो जैसे आपने बताया था राजा नरक की कथा में कि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, गलती से गाय ब्राह्मण को जो दान दी थी वो वापस उधर ही उनके पास पहुंच गई, फिर उन्होंने दान कर दी। तो उन्हें इतना ज्यादा कष्ट मिला था, वो मतलब छिपकली बन गए थे। अब आप सभी विचार कर कंफ्यूज सकते है हैं। ना? इसी तरह यमराज भी कंफ्यूज थे, किसको दंड देना है, किसने कर्म किया। जब सभी हैं, आप जैसे जैसे माता जी प्रभु जी आगे बोल रहे इसको देना चाहिए, अब चील को देना चाहिए, कोई बोला सांप को देना चाहिए, सांप जो मुंह से बंद रखता तो जहर ही नहीं निकलता। राजा बोले खाना नहीं बनाता तो मिलता ही नहीं, जहर नहीं जाता, इतने लोगों को मृत्यु नहीं होती। तो यमराज जो है बोलते ठीक है रुको, कुछ तो करना पड़ेगा। यमराज जो है फिर गांव जाते हैं, है ना? गांव जाते हैं, बोलते हैं, उस गांव में जाते हैं और बोलते हैं आप बता सकते हैं राजा कहाँ मिलेगा? मैं दो उदाहरण दूंगा, राजा कहाँ मिलेंगे। एक एक ये वाला यमराज उदाहरण देते हैं, फिर बोलते हैं राजा, कौन सा राजा? तो बोलते हैं ये गांव के जो राजा हैं, है ना? तो बोलते हैं अरे उस गांव में भूल के भी मत जाना। क्यों भाई? बोलते उस गांव का राजा में जाओगे तो खाने में क्या है, जहर मिला के सबको मार देता है। ठीक है, दूसरा आगे गया तो सब वही बोल रहे हैं। तब यमराज जो फिर क्या किए, बोले जो जिसकी बुराई कर रहा है उसको कर्म मिलेगा, है ना? इसलिए बोलते हैं ना कि दो व्यक्ति है, आप देखिएगा, आप हैं और मान लीजिए सुरेश प्रभु और मैं हूं, है ना? अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो उसने बुरा किया, उसके बारे में अगर हम पीठ के पीछे में बोलते हैं तो कर्म जो है ट्रांसफर हो जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ सुरेश प्रभु को, सुरेश प्रभु जो सुन रहे हैं उसको भी मिलेगा, और वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोले अच्छा ऐसा, हाँ वो तो ऐसा ही है, तो उनको और भी मिलेगा। मतलब तो प्रभु की प्रभु जी बुराई नहीं होता ही करवाई। रहता है प्रभु जी। हाँ, तो इसलिए तो कहते हैं कि देखते हैं ना, बोलते हैं अरे वो तो इतना बुरा आदमी है, उसके साथ कभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जो पीठ के पीछे में बात कर लेते तो उसका सारा कर्म खत्म हो जाता है ना। तो प्रभु जी फैक्ट भी नहीं बोल सकते, जैसे कि कोई जिसकी आदत ऐसी है तो ऐसे मतलब बोलते हैं कि इनकी आदत ऐसी है करने की, तो वो भी नहीं कहना चाहिए। नहीं करना चाहिए, उसके जो है प्रार्थना करना चाहिए। फिर यमराज जो है एक और उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, बोलते कि पाप जो है कैसे जाएगा? तो बोले तुम एक काम करना, सुबह सुबह जो है तार तार होता है गांव में, अगर आप जाएंगे तो तार होता है जिसमें तारी बोलते हैं, वो फल होता है, खजूर के जो पेड़ होते हैं उसमें से तारी निकलता है, वो अगर फ्रेश पियेंगे तो हेल्दी होता है, और जब वो सड़ जाता है तो उससे जो है नशा के काम में भी आता है वो। तो वो व्यक्ति जो है बोलते हैं उनका जो पाप है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, उनका पाप जो है बहुत पाप था, कई कई जन्मों का जो है पाप था। तो यमराज जो है बोले कैसे समाधान होगा? तो एक तरह है भक्ति का, एक दूसरा बात है, और दूसरा जो है बोले तुम एक काम करना, 5 बजे जो सुबह सुबह जो है तारी के पेड़ के नीचे जो है बैठ के जाके योगा करना, है ना? अब वो व्यक्ति जो है वहां पे सुबह सुबह 5 बजे जाके योगा करता था, और फिर जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, सारे गांव जो है मजाक बोलते थे देखो, पूजा पाठ करता है और यहाँ पर आके तारी के पेड़ के नीचे सुबह सुबह ले रहा है ना? वो कुछ नहीं बोला, फिर देखा जो उसका जो पहाड़ की तरह जो पाप था, वो पहाड़ की तरह पाप जो है छीन हो गया, खत्म हो गया, और जो पहाड़ की तरह जो पाप था वो सारे गांव वाले में बट गया। वो व्यक्ति क्या किया, शांत था, चुपचाप था। तो इससे बोलते हैं सहना भी बहुत बड़ी चीज है। दूसरा लेसन जो मिलता है, आप जो भी स्थिति में हो चुपचाप से सह ले, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, पाप प्रभु जो जी है। वो तो निकल ही जाता है प्रभु जी, हाँ, बोलने के लिए निकल ही जाता है इसी को तो प्रभु। नेक्टर ऑफ डिवोशन में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं ना, वाचो वेदम। जो जिह्वा के ऊपर जो कंट्रोल कर लिया, खाने में भी बोलने में भी, वही जीत जाएगा। यही तो हमारा स्वभाव है ना। तो यहाँ पे जो है वापस हम आते हैं, और एक दो और कहानी फिर बीच में जो है हम लोग जो है सुनाते हैं। तो ये इस तरह से जो है कर्म जो रहते हैं, इस तरह से जो रहते हैं प्रगाढ़ रूप में रहता है। कौन से कर्म कैसे आएगा, कौन से जन्म का है, इसी जन्म का है कि नहीं है, हम लोग को नहीं मालूम है। तो हमें व्यक्ति को जो है धन्यवाद करना चाहिए, जो भी आप परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में, आपको ये समझना है कि वो हमारा स्वयं का जो है वो कर्म है, जो उस व्यक्ति के समान जो आ रहा है। और जब आपके बुरे समय चल रहे हैं, जब कर्म आ रहा है, तो आपको ये समझना है कि आपके कर्म जो है वो समाप्त हो रहे हैं, है ना? कहना आसान है, लेकिन जब परिस्थिति में आते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और जो है सह पाना जो है वो रहता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण फिर क्या बोलते हैं, कहते हैं कि
हाँ, सबसे फेमस श्लोक है, अबेंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन, जस्ट सरेंडर अनटू मी, आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिनफुल रिएक्शन। हमने जो है पिछले भगवत गीता के क्लास में भी ये कहा था कि पाप से जो है हम कैसे मुक्त हो सकते हैं ना, पाप से जो है हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है जन्म मृत्यु का जरा व्याधि का एक श्लोक जो देखे थे, क्या देखे थे इसमें, हमें भगवान से जब मुक्त होना है तो यहाँ पे क्या कहता है, सर्वधर्म परित्यज्य, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करने के लिए। हम देखते हैं जो भी हम पाप करते हैं, कभी अनजाने में करते हैं, कभी जान के करते हैं, आप कितने भी कर लीजिए, हम जो है पाप में क्योंकि हमारे मन, मनुष्य जो होता है ना, वो मन में अगर हम नहीं भी बोलेंगे ना तो अपने मन में जो है वो पाप में चलते रहेगा। तो हम जब भगवान के जब शरण में आते हैं तो फिर क्या रहेंगे, भगवान हमारा उद्धार करते हैं, उससे जो है भगवान बोल रहे हैं कि डरो मत। मैं संक्षिप्त में जा रहा हूँ, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा सीक्रेट जो रहस्य क्या करते हैं, अटोनमेंट इज कंपलसरी फॉर काउंटर एक्टिंग सिंफुल एक्शन। देखिए कई बार जो रहता है, हमको मालूम रहता है कि वो गलत है ये, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार जो रहता है हमारे, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, तुरंत बंद कर। कई बार जो रहता है हम गलती से जो है पाप करते हैं, दो तरह का रहता है, एक इच्छा नहीं होती करने के फिर भी कर लेते, लेकिन हमारा कर्म कभी कभी ऐसा रहता है या स्वभाव ऐसा हो जाता है कि हम कर लेते हैं। और जब कई बार आप देखेंगे जब कर्म कर देते तो बाद में जो अंदर में जो है वो गलती आपको महसूस होती है कि मैंने जो है बुरा काम किया है। अटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित। तो जब हम जब पाप कर लेते हैं जान के, तो ये बोलते हैं आपको जब प्रायश्चित होगा ना तो ही फिर आप जो है आगे बढ़ेंगे। आपको जब तक वो गलती जब करते हैं आपको जब तक महसूस नहीं होगा तब आप अहंकार में है। भगवान श्रीला प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, फोटो से आपको क्या समझ में आता है, हाथी क्या कर रहा है। हाथी नहा रहा है प्रभु, फिर बाहर जाके वो लौट जाता है। हम भी देखिए यही करते हैं। हम क्या करते हैं, गंगा में जाके स्नान करते हैं, पवित्र नाम का लेते हैं, कई कई जन्मों से जो हम सोच रहे हैं भगवान की भक्ति करते हैं, फिर जैसे नदी से बाहर निकलते हैं फिर क्या करते हैं, हाथी जो रहता है वो कीचड़ को लेकर फिर से अपने मट्टी को लेकर अपने देह में छिटता है, इसको बोलते हैं हाथी स्नान। तो हमें जब हम पाप करते हैं तो फिर हम प्रायश्चित करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा पाप तो खत्म हो जाता है। हम जब प्रायश्चित भी करते रहते हैं कि भगवान के सामने जब जाकर रोते हैं कि भगवान मैं इतना पापी हूँ। बलराम जी जो हैं देते हैं ना 6 तरह का जो हमारे हृदय में जो राक्षस जो रहता है, काम क्रोध मद लोभ सब सभी रहता है, तो वो हटाने के लिए हमें हमारे जो आदि गुरु हैं वो मदद करते हैं। जब हम जाके गुरु से भगवान से माफी मांगते हैं तो भगवान जो आपको राह देंगे। और ये बोलते हैं वास्तविक में असली प्रायश्चित क्या है, तभी पॉसिबल है जब हम भगवान के पवित्र नाम का लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये पवित्र नाम इतनी महान है कि हम देते हैं जितना महान से महान पाप भी है सारे नष्ट हो जाते हैं। ये इसी तरह से जिस तरह हाथी अंदर में जाने के बाद स्वच्छ हो जाता है तो फिर लेकिन हम क्या रहते हैं, हमारी जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं होती है। भक्ति या हरे कृष्णा महामंत्र से जो रहता है वो पाप जो आपने जो भी किया वो नाश, बोलते भगवान इतना महान है कि आपने जितना भी पाप किया है वो समुद्र में एक आपकी माचिस की तिल्ली की जो अग्नि है उखने समान है। एक माचिस की तिल्ली अग्नि जो रहती है वो समुद्र का क्या बिगाड़ सकती है। तो बोलते हैं भगवान श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं, इतने करुणामय के सागर में हैं कि हम बोलते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत बड़े पापी हैं। हमारा पाप को जो बोलते हैं ना भगवान जो एक बोलते हैं ना छोटा सा माचिस की तिल्ली की तरह देखते हैं। अब भगवान के पवित्र नाम जो है वो सारे चीज को मिटा देते हैं। लेकिन क्या होता है, पाप करने की जो प्रवृत्ति रहती है ना वो कभी जाता नहीं है। हमको मालूम है गलत होता है, ये सभी के अंदर है, हमारे अंदर भी है, बहुत है, अब कब सुधरेंगे पता नहीं। ये जो बैड हैबिट्स हैं जो बुरे जो हैं, जाता ही नहीं है, कैसे रहेगा, तो है ना। तो ये तीसरा सीक्रेट है, रहस्य। पहला रहस्य क्या था कि हमें जो है, तीन क्या था, पहला क्या है, हमें जो है भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। दूसरा रहस्य क्या है, हमेशा हमेशा जो है भक्ति में सेवा करना है ना। और तीसरा जो है यहाँ पर हमें जो है प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरे के बारे में बोलूं या ये रहूं, फिर भी जो है मेरे अंदर में जो वो प्रवृत्ति जो है आते रहती है। और ये केवल और केवल जितना आप जप करेंगे, जब भी आपको किसी के बारे में बोलना है या करना है, आप भगवान का वहां पे पवित्र नाम ले लेंगे। अब आपको कोई डांटे या करे तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान कहीं ना कहीं जो है आप इस माध्यम से जो है आप बोल रहे हैं, आप परमात्मा रूप में मेरे को जो है शक्ति दीजिए कि मैं इस सिचुएशन को जो सह पाऊं।
तो इस तरह से जब आप प्राश्चित और इस तरह के तो फिर जो है आ रहेंगे। देखिए इसको आजम मिला का आप सभी कहानी जानते हैं, सेकंड चांस जो है दूसरा विषय हम जो बोलते हैं सेकंड चांस, आजम मिला को तो सेकंड चांस मिला था, हम सभी को भी सेकंड चांस मिला, दूसरा जो है चांस मिला है भगवान के, एक मनुष्य का जन्म जो है फिर से मिला है। और उस मनुष्य का जन्म जो है हमें भगवान की सेवा में जो है बिताना चाहिए, नहीं तो फिर क्या रहेगा, हम फिर से जो है जन्मा मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो है हम जो है फंसते रह जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस तरह से रहेंगे। और जैसे कभी कभी एक उदाहरण मैं देता हूँ, जब मैं छोटा था तो माता पिता जो है स्कूल में 500 रुपया पॉकेट मनी देते थे। तो मैं सुबह में भी बता रहा था मॉर्निंग की कक्षा में, लेकिन बहुत लोग नया है तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपने जीवन से कुछ जो है प्रैक्टिकल लेसन सीखा हूँ। कई लोग जो हैं बोलते हैं, अब जैसे भगवत गीता के हम लोग जब स्टडी करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं किस तरह से 5वें अध्याय में 3रे अध्याय में जो है कर्म से कैसे मुक्त हो जाते हैं। कई कई व्यक्ति बोलते हैं धन आएगा तो हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो उससे भी पाप मिलता है। मैं 2 उदाहरण दूंगा जिससे आप जो है समझेंगे। स्कूल में जब था, मैं हॉस्टल में था, 5 साल से हॉस्टल में रहा हूँ, बॉय स्कूल था। तो कई बार जो है हम बोलते हैं ना, हम बहुत लकी हो जाते रोड में 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया गिरा हुआ मिलता था, उठा लेते थे, खाते थे, बड़ा मजा आता था। और कभी कभी देखते थे अपना पैसा भी जो है खो जाता था, जब मिलता था तो बोलते थे अरे आज तो बड़ा भाग्यवान है, भगवान ने दिया है। और कभी कभी निकल जाता था। जब इसको अब धीरे धीरे भक्ति में जब आने लगा, भगवत गीता पढ़ने लगा, तो इसको यहाँ पे समझ में आया। एक बार की बात है, कई बार जो व्यक्ति ये मान लीजिए बहुत गरीब आदमी है, ठीक है ना, बहुत गरीब आदमी है, 500 रुपया मुश्किल से कमाया है, जिसका जो है 1 सप्ताह का जो है घर का खाना राशन चल जाएगा, है ना। अब वो व्यक्ति की जो है 500 रुपया जेब से गिर जाती है। इस कर्म का जो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, बस छोटा सा एक स्टोरी सुना रहे हैं कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल रूप से जो है व्यक्ति को जो है मदद मिलेगा। तो 500 रुपया जो है वो चला गया, और फिर जो है वो हम ले लिए, और उसके बाद जो है हम अपना आराम से जो भी खाना था या जो भी खरीदना था कर लिए। अब जो व्यक्ति का जो 500 रुपया जो खो गया, वो व्यक्ति जो है बार बार सोच रहा है कि क्या होगा इसका, कैसे हो गया, परिवार का खाना कैसे चले। तो कभी कभी होता है कर्म का जो होता है, अच्छे तरीके से अगर धन कमाया नहीं जाता तो उसका भी आपको भी फल मिलता है। तो क्या रहे, अचानक जो है बाजार में गए, दवाई लाने गए, या कुछ एकदम प्लेन है, अचानक से जो चलते चलते पैर टूट जाता है, क्या होता है, पैर टूट गया, 500 रुपया मिला नहीं था, उससे ज्यादा 5,000 रुपये का जो हॉस्पिटल में जो है वो रह जाता है। दूसरा उदाहरण जो है देने जा रहे हैं, कई बार जो है आपके कर्म में लिखा है खाना और क्या बोलते हैं रहना, ये सारे चीज जो है ऑलरेडी रहता है। तो जितना आपको मिला है उससे मिले, उससे ज्यादा आप अधिक का प्रयास कीजिएगा तो आपको जो है क्या मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा। तो हस्बैंड वाइफ थे, 45,000 रुपीज उसका सैलरी था, राधे श्याम प्रभु ये एग्जाम्पल दे रहे थे। 45,000 रुपीज सैलरी था, वो ऑफिस में जो है 12 घंटा काम करता था। बोला कि बस तुम केवल 2 घंटे और काम करोगे तो मैं तुम्हारा सैलरी जो है नेट फिगर कर दूंगा 50,000 रुपया महीना। वो व्यक्ति बोला, बीवी से पूछा क्या करना चाहिए, बोलता है अरे 2 ही घंटा है ना, 2 घंटा काम करो, कोई नहीं, 5,000 में बहुत कुछ हो जाता है। अब वो व्यक्ति जो है 14 घंटा जो है काम करने लगा, 50,000 जो मिला। अब उसके भाग में जो है धन था नहीं, धन और खाना जो है ये पहले से निर्धारित था, किसको कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब ये जो व्यक्ति था 50,000 कमाने लगा, अब 1-2 महीना के बाद जो है क्या होगा, हेल्थ जो है खराब रहने लगी। 14 घंटा अगर काम करोगे तो कैसे होगा। तो क्या रहेगा, जो 5,000 रुपया जो एक्स्ट्रा मिलता था अब जो है वो डॉक्टर के पास जाने लगा, 5,000 रुपया जो है वही चीज जो है डॉक्टर के पास खर्चा करने लगा। तो देखिए नेट क्या हो गया, 45,000 ही हो गया। तो वे भी है धन का जो है शिला प्रभुपाद जो है एग्जाम्पल देते हैं। तीसरा जो मैं बता रहा था कि हम जो रहते हैं कर्म जी रहते हैं 3 प्रकार से कैसे डिवाइड, आपकी जो है इच्छा रहती है, जैसे माँ बोलती थी 500 रुपया देती थी मम्मी, तो हम लोग क्या करते थे, 500 रुपये में से 400 रुपया जो है अपने खर्चा के लिए रहते थे, 100 रुपया जो है कभी कभी गरीब को जो है रास्ता में कभी भी दिखा, कभी 10 रुपया, कभी 50 रुपया जो है दान दे दिए। अब देखिए जब हम दान देते हैं हम अच्छे तरीके से देते हैं, लेकिन उसके भी कर्म लगते हैं, है ना। कर्म कैसे लगते हैं, आपने अच्छा तरीके से दान दिया है ना, लेकिन मान लीजिए वो व्यक्ति जो है 3 तरह का किया, अब आके उस खाना से जो है नॉनवेज खरीद लिया, मतलब एक जीव हत्या हुई। अब उसके घर में जो है जीव हत्या आया, वहां पे जाके व्यक्ति ने जो है खाना खाया, पूरा परिवार खाया, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, व्यक्ति जो है गया सब्जी लाया, खाया, परिवार खा लिया। तीसरा हुआ दारू पिया, दारू खरीदा, दारू जाके घर में जाके अपने बीवी बच्चे को मारा। तीनों क्रिया में
कौन सा पुण्य है, कौन सा पाप है, कौन बताएंगे? बीच वाला प्रभु जी, सब्जी खरीदा वो सब्जी वाला। खरीदा वो है। घर वाले बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे कि हाँ किसने दिया, आज जो है घर का खाना मिल गया। अब पहला में भी तो देखिए खाना है, फिर वो क्यों पाप है? बट नॉन वेज है ना प्रभु जी। जीव हम हत्या कर रहे हैं। तो जब जीव हम किसी हत्या। को धन देते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि हमें किस लिए दे रहे हैं। तो वही आपने अच्छे से दिया, लेकिन आपके जो कर्म जो रहे वो जो है डोफटेल हो गया। तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है धन नहीं देना चाहिए। आप क्या करते हैं, भगवान का प्रसाद लेके जो है वो दीजिए, तो उससे जो है उसका भी आराम मिलेगा, मतलब उनको भी भक्ति में आगे बढ़ेगा, आपको भी मिलेगा। तो धन जो है पर्याप्त व्यक्ति को सही जगह पे सही स्थान पे उसको देना चाहिए, तो ही फिर आपका जो है यूज होगा। तो ये कर्म जो है बहुत टॉपिक बड़ा है, और इसको समझना में भी बहुत ही है, कभी अच्छे मिलते हैं कभी बुरे मिलते हैं, है ना। तो ये चीज जो है यमराज भी रहते तीन तरह से जो है हमें कर्म, जब हम मन में जो सोचते हैं, वचन से किसी को बोलते हैं, और जो है किसी को बोलते हैं मनसा कमा वाचा जो है, ठीक है, हम अंतिम तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखें, कर्म से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? कर्म से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम क्या रहते हैं, भगवान के कार्य के लिए जब हम डालते हैं तभी हम मुक्त होंगे। अगर हम भगवान के कार्य के लिए मुक्त, भगवान को कर्म में नहीं लगाते, निष्काम कर्म योग नहीं करते, तो तब क्या होगा, हम कर्म के बंधन में जो है हम फंसते चले जाते हैं। इसका अनुवाद नहीं है तो मैं नीचे जाता हूँ। ओके, अंतिम खंड है, श्री नामामृता हमने पढ़ लिया है। प्रीचिंग इज द एसेंस, कोई पढ़ना चाहेंगे इंग्लिश में? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? पढ़ी मत जी। ये नीचे वाला ना प्रभु जी, प्योर हम्म। डिवोटीज प्रीच वाला जो, हाँ हाँ जी। pure devotees preach and deliver conditioned souls. The Ganges water is celebrated as being able to eradicate all kinds of sinful reactions. In other words, when a person takes his bath in the Ganges, he becomes freed from all life contaminations. The Ganges water is celebrated in this way because it emanates from the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Similarly, those who are directly in touch with the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead and who are absorbed in the chanting of His glories and are freed from all material contamination. Such unalloyed devotees are able to show mercy to the common conditioned soul. Srila Vrindavana Dasa Thakurji has sung that the devotees of Lord Chaitanya are so powerful that each one of them can deliver a universe. In other words, it is the business of devotees to preach the glories of Lord and deliver all conditioned souls to the platform of Sudha Sattva, goodness. Srimad Bhagavatam 4.24.58. Hare धन्यवाद Krishna. माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस। आप सभी जो हैं कितने कक्षा से जो हैं सभी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है सीखे हैं। तो हम सभी जो हैं शुद्ध भक्त तो नहीं हैं, हम सभी जो हैं क्या रहते हैं, इस कंडीशन में आते हैं, कंडीशन सोच है, मतलब हम बद्ध जीव हैं। तो शिला प्रभुपाद की कृपा जो है कारण जो हम सभी जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं, और हम सभी जैसे बद्ध जीव को जो है हम सभी का यहाँ पे उद्धार कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह गंगा देखिए कितना महान है, हम सभी के जो है पाप को धो सकती है। अब वो गंगा जो भगवान के चरण से निकलती है सभी पापों को धो सकता है, तो समझ सकते हैं जो व्यक्ति भगवान के चरण को ऊपर जब समर्पित करता है तो उसका क्या होगा, वापस जो है क्या कहते हैं, भगवान के धाम ही जा सकते हैं, ये फल जो है आपको प्राप्त होता है। तो बोलते हैं जो भी भगवान के नाम रूप गान में जो है रहते हैं, बोलते हैं भगवान की महिमा के गुणगान रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, सभी दोष से जो है मुक्त हो जाते हैं। तो बोलते हैं ऐसा भगवान के भक्त जो रहते हैं वो जानते हैं ना, जैसे रहते हैं ना, क्या करती है माँ, क्या करती है जब वो खाना बनाती है तो सोचती है कि बच्चा खाएगा या परिवार का खाएगा, वो पहले उसको खिलाती है फिर खाती है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है हम हमको जो फल जो प्राप्त होता है, जो अच्छी चीज मिलता है, हमें जो है अपने परिवार दोस्त बंधु तक ही नहीं, बाकी जीव के ऊपर में भी जो है जीव दया करना चाहिए, कि हमें समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं जो है फंसे हुए हैं यहाँ पे। इसलिए श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जो है कहते हैं कि भगवान के जो भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु के इतने शक्तिशाली, जैसे महाप्रभु जो है शिला प्रपात के महाप्रभु कहते थे मेरे सेनापति अध्यक्ष आएगा शिला प्रपात के बारे में, और जो है सारे तरफ जो है भगवान को जो है प्रचार करे। देखते हैं कि जब वो आए थे
देखें तो बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड चारों देश में जो है भगवान का जो है पवित्र नाम। देखिए कई बार जो है प्रश्न आता है, बोलते चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, वो तो स्वयं जो है सभी को कृष्णा प्रेम में जो है डाल सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान जो है ऐसे कार्य जो भगवान अपने भक्तों से कराना चाहते हैं। भगवान तो बहुत पावरफुल हैं, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है, इसलिए हमारा जो है बिजनेस जो है, हमारा जो व्यवसाय क्या है, हमारा जो है भगवान की जो है प्रचार करना है। भगवान की प्रचार, जब उनकी महिमा के गुणगान करते हैं तो फिर क्या है, तभी जो बदजीव जो है क्या रहेंगे, उनका जो है मोक्ष प्राप्त करेंगे भगवान के द्वारा। हम क्या है, प्रकृति के तीन गुण जो होता है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, हम सभी को है पहले सतोगुण में आना है। जब हम भक्ति करने लगेंगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे, तो हम किस में आ जाते हैं, हम शुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं। प्रकृति के तीन गुणों से जो है ऊपर उठ जाते हैं। प्रकृति के तीन गुणों में रहेंगे तो आप क्या करते हैं, बंध जाते हैं, लेकिन शुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रकृति जो है आपको बांधती नहीं है। भक्ति ही एक ऐसा चीज है, आपकी लिए आप बंधेंगे नहीं तो फिर से, इसलिए जो है आपका दोबारा जो है जन्म नहीं होगा। तो ये जो है प्रचारी सहारे, इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया करके जो है आप अलग अलग तरह से जो है प्रचार कर सकते हैं, किसी को क्लास में बुला सकते हैं, भागवतम भगवत गीता है उसको वितरण करने में मुझे मदद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। हम सभी ने देखा कि किस तरह से जो है हमें जो है भगवान को जो रहता है, एक मिनट, ये क्या आ गया, चले जाओ हम। हाँ, अनजाने में किया गया पाप जो खाना जो है हमें पकाना चाहिए। तो भगवान के सभी भक्त रहते हैं पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इन तरह से भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या भगवान को जो है प्रार्थना करना चाहिए, ये नेक्स्ट वीक का जो है भक्ति रक्षा का जो है विषय है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आज के कक्षा में जुड़ने के लिए। हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे भगवान की जो है क्या भोग लगाना चाहिए, भगवान को क्या हम ऑफर कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, जिनका भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, और एक अनाउंसमेंट आप कृपया करके 2 मिनट रह सकते हैं।